guys, this is Rabia Tahir, and you're listening to The Brown Girl Rants. I hope you all are doing well. I hope you are having an amazing week. Let's start this podcast from a story time, okay? So I woke up, and obviously, it's a very bad habit. Like, in the first thing I do after waking up is to check my phone. So I checked my phone and there was a follow on my public Instagram account, which is dedicated to this podcast. I got a follow on that, or it was not someone Pakistani, Indian, Desi. It was a white girl following me, and I looked क्योंकि obviously I don't have a lot of followers और इस वजह से I looked up for her account which is also called stalking लेकिन yeah I looked up who is she, why is she following me, मतलब why, what's up. So I looked up for her account and I stalked her account, in other words, or she was also a blogger, or she had more followers than me. तो if तो she was a blogger, तो I followed her back और मैंने कहा कि obviously she's being supportive, so I should be supportive too, and I actually like the content she was putting on, so I followed her back. Then I went to the market with my mama, or I came back to our DM from that account, from that blogger white girl, and she DM'd me basically saying that she works for this company, which is the Ambassador Company, which is a company of sunglasses, or the company is New York based, or she loved my content and she would like to send me a few products of her company, so I should DM the Instagram account of the ambassadors. She sent me the profile of the ambassadors and she said I can DM them if I want free products and they want to send over the products, which is also called a peer package. So initial thought was that okay, this looks skeptical, or why would someone send me free products? I don't even have like 1,000 followers on Instagram. I think I have like 600 something. And speaking of Instagram, if you don't already follow my Instagram account, then you should probably do. So it's at the Brown Girl Rants on Instagram. लेकिन तो it was skeptical लेकिन free products तो I looked up for the account, the ambassador का account, तो I figured out कि it's a New York based company. उसके बाद आई मतलब कि मैंने कहा ये तो स्कैम ही हो सकता है, क्यों कोई मुझे मुफ्त की प्रोडक्ट्स भेजेगा, और मैं और एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी क्यों भेजेगी, राइट? मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और मुझे पता है कि और मेरे इतने कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, तो और मुझे पता है कि लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं कंपनीज के जो कि स्कैम होते हैं, लेकिन दैट इंस्टाग्राम अकाउंट जो वो एम्बेसडर जो सनग्लासेस कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट था, दैट हैड लाइक 400K फॉलोअर्स। और फिर आई वेंट इनटू देयर टैग्स, जो टैग्स की ऑप्शन होती है इंस्टाग्राम पे, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैड टैग देम इन देयर पोस्ट के थैंक यू फॉर सेंडिंग free stuff for मतलब कि they were sharing their मतलब कि the DM too that they got from the company, which made me realize okay Ravi, you're not that special, they probably DM every single person. उसके बाद मैंने उनकी पोस्ट चेक की, तो उनकी पोस्ट में भी they basically would share pictures of uh, different people, और every मतलब कि they were not just pictures of just white people, हर तरह के लोगों की pictures थी, and they were the pictures that the people themselves shared wearing their glasses, and basically they were the ambassador, the brand ambassador of that company. तो I thought maybe it's legit. मुझे ये बात समझ नहीं आई कि if they are sending free stuff to everyone and anyone, तो how they're making profit. लेकिन फिर आई डीएम देम, मैंने कहा अच्छा what are the odds, what could go worse, क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेट्स डीएम देम। डीएम करने में क्या हर्ज है, शायद मे बी यू कैन गेट फ्री सन ग्लासेस, which would be so amazing. तो मैंने उनको डीएम किया कि हाय, और they were like ओ, मतलब कि उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव का डीएम आया, तो मैंने कहा हाँ, और फिर उन्होंने कहा ओके या वी वुड लाइक यू टू हैव
आर फ्री प्रोडक्ट्स। और आप ये हमारी वेबसाइट है, उन्होंने दे सेंट मी अ लिंक ऑफ द वेबसाइट, or you can choose 7 sunglasses, or once you have chosen those, let us know, we'll give you a discount code, और फिर मतलब कि you can get the products free। तो मैं गई उनकी साइट पे, और द साइट वाज लिजिट, दे हैड अ साइट, और हर ग्लासेस कॉस्टेड like $50, which मैं I would never pay $50 for a sunglasses obviously। तो मैंने जो है वो देखा, और मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या होता है, तो आई एडेड ग्लासेस इन माई कार्ट, और इवन दो दे वर लाइक, और $50 प्लस पर सनग्लासेस था, तो दैट्स अ रफ एस्टिमेट ऑफ $350 ओवरऑल, ठीक है, विच इज़ अ लॉट। अगर मैं पाकिस्तानी रुपी में देखूँ, इट्स अ लॉट, इट्स लाइक मेरा मैथ्स बहुत बुरा है, लेकिन इट्स समथिंग लाइक 65,000 रुपीज वर्थ ऑफ सनग्लासेस। तो अच्छा इज इट 65? एक मिनट मुझे सोचने दो। या इट्स 65, अच्छा, it's not 65, sorry, it's 70,000 worth of sunglasses, which is it, हाँ, it is। मैं सोच रही हूँ, मैं डॉलर का रेट देख रही हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, तो मैंने उनको फिर कहा कि हाँ मैंने कर लिया, फिर उन्होंने मुझे डिस्काउंट कोड दिया, और मैंने डिस्काउंट कोड लगाया, और सारी कॉस्ट खत्म हो गई, मतलब कि जो आपके कार्ट में मैंने वो डिस्काउंट कोड लगाया, और वो सारी कॉस्ट के आ गया $0, मतलब कि आई हैव टू पे $0, और वो $350 कट हो गए, ठीक है। और विच वॉज वेरी एक्साइटिंग। उसके बाद दे डीएम मी दैट आई हैव टू पे द शिपिंग कॉस्ट। और मैंने कहा अच्छा तो ये सीन है। और मैं गई हूँ, मैं आई वाज क्यूरियस कि यार कि कितनी हो सकती है शिपिंग कॉस्ट, क्या हो सकती है। और मैंने बड़ा डर डर के अपना एड्रेस डाला ताकि वो लोग कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ कहीं पे एड्रेस डालने से, स्पेशली जब से वी हैव शिफ्टेड इन अपार्टमेंट, मैं ज़्यादा डरती हूँ। और तो इस वजह से मैंने बड़ा डर डर के डाला, और मैंने बल्कि अपना हाउस नंबर नहीं डाला अंदर, और मैंने सिर्फ अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग का स्ट्रीट नंबर बताया। तो फिर शिपिंग कॉस्ट नीचे आती है $40, और which मतलब कि अगर टेक्निकली स्पीकिंग फॉर अ 350 वॉट सन ग्लासेस, $40 इज नॉट बैड। लेकिन फिर मैंने देखा कि अच्छा $40 कितने बन रहे हैं, 8,000 पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीज, विच इज़ अ लॉट, लेकिन फॉर अ गुड क्वालिटी सन ग्लासेस दे आर नॉट। तो लेकिन मैं फिर भी थोड़ी स्केप्टिकल थी कि यार पता नहीं सही है कि नहीं है, तो आई एंडेड अप नॉट गेटिंग देम ऑब्वियसली, मुझे लग रहा था। और फिर मैंने मतलब कि डू आई नीड 7 पेयर ऑफ सन, नॉट 7 is it called pair of sun, मतलब is it called a pair of sunglasses, is it called a pair? लेकिन डू आई नीड 7 sunglasses? नो आई डोंट। आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग सनग्लासेस बाय द वे। पहले मैं सनग्लासेस बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, क्योंकि आई यूज टू हैव दिस फीलिंग दैट आई लुक क्रेजी इन देम। आई स्टिल डू, लेकिन मुझे जब से प्रिस्क्रिप्टेड ग्लासेस लगी, जो नज़र के लिए लगती हैं, और मैं अब बहुत नॉर्म मतलब कि आई एम सो यूज टू वेयरिंग दोज ग्लासेस। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो आई डू अपलोड स्टोरीज वेयरिंग दोज ग्लासेस। तो वो मुझे इतनी आदत हो गई कि फिर मुझे मतलब कि आई हैव नॉर्मलाइज्ड वेयरिंग आर ग्लासेस। और फिर मतलब कुछ दिनों पहले ही, बिल्कुल इस सीजन में, और क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो धूप काफी है, तो मैं मार्केट जा रही थी और मैंने लगाई, और आई रियलाइज कि यार वेयरिंग अ सन ग्लासेस इज नॉट जस्ट, मतलब कि इट्स नॉट टू लुक कूल, इट एक्चुअली डज समथिंग, एंड इट्स सो गुड। और मैं बार बार सन ग्लासेस उतार के देख रही थी कि इट्स सो बैड कि आप अपनी वो नेकेड आई से देख रहे हो और सन ग्लासेस लगाओ, तो मतलब कि इट्स सो गुड, ऐसा लगता है कि बाहर मौसम ही डिफरेंट है, ऐसा थोड़ी फील आती है कि इतनी गर्मी नहीं है, इट डज समथिंग। तो आई जस्ट स्टार्टेड वेयरिंग सनग्लासेस। लेकिन डू आई नीड अ 7 पेयर ऑफ सनग्लासेस? नो। लेकिन वॉज इट अ गुड डील? येस, बट आई स्टिल कांट फिगर आउट व्हाई वुड दे आस्क मी टू बी ambassador of them, या why would they मतलब कि choose me to get their free products। लेकिन that's that।
मेरी ना माय मॉम फॉलो अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, और वो उनकी स्टोरीज देखते हैं तो उनको पीआर पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो वो इंतजार करके कि किस दिन मुझे आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, और शायद मतलब लेट्स सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, लेकिन दैट्स अ वेरी फार फेच्ड आइडिया, और लेकिन शी इज लाइक तुम्हें कब मिलेगी। लेकिन आई मतलब कि रियलाइजिंग कि इट्स सो फन राइट टू गेट फ्री प्रोडक्ट्स, कि आपको बस मुफ्त की चीजें मिल रही है, कपड़े आपको मुफ्त के मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लोग आपको डीएम करें कि आया आके हमारी ये चीज ट्राई करें फ्री में, और उस चीज की बस प्रमोशन करें, एक स्टोरी डालनी है हमने और उस चीज के लिए आपको वो चीज फ्री मिल रही है। तो that's awesome. I would love to live that life. So let's see what happens. लेकिन this was my humble experience. और हाँ, we are not getting the sunglasses, लेकिन it's fine. It was good. I actually DM'd them कि sorry I cannot pay the shipping cost, और इस वजह से I cannot take your offer. और मैंने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा शायद वो कहें कि इट्स ओके, हम आपको फिर भी भेज देते हैं फ्री में, तो शायद कुछ बन जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया। तो दैट्स दैट। उसके बाद अच्छा, इफ इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, तो जो एपिसोड ये है वो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस इज अ टेक 2 ऑफ द एपिसोड। मैंने कल रिकॉर्ड की थी और इसी टाइम की थी, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मैंने टॉपिक कुछ और था, बात मैंने कुछ और करना स्टार्ट कर दी, और वो सब खत्म, मतलब कि उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं जब रात को मैं रिकॉर्ड करके निकली हूँ ना, मैंने कहा नो, आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, और अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, विच इज़ नॉट दैट गुड। और वेडनेसडे एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है 12 बजे में रात के, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे पहले रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हाँ, इट्स एवरी टाइम आई व्हेन एवर आई रिकॉर्ड समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम, इट ऑलवेज टर्न्स आउट गुड। हालांकि ये दूसरी बार है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होता है कि आपने क्या बोलना है, तो इट्स लाइक कि आपने पहले रिहर्सल की है फिर की है। लेकिन इट्स डेंजरस, मैं पहले 1 घंटा बोल के रिकॉर्ड करूँ, फिर मैं वो पूरा सुनूँ, फिर मैं, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली ये होता है कि मुझे पूरा हफ्ता कोई, वेडनेसडे मैं अपलोड करती हूँ तो वेडनेसडे के बाद, और थर्सडे, फिर वेडनेसडे में स्कूल में रहती हूँ, थर्सडे को मैं सोचना शुरू करती हूँ, क्योंकि आई हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड, व्हाट आई एम गोना स्पीक इन द नेक्स्ट एपिसोड। और फिर मुझे संडे को जाके कोई आमद होती है एकदम से कुछ करते हुए कि रविया इस चीज़ पे पॉडकास्ट बनाओ, और संडे मेरा एक्चुअली रिकॉर्डिंग डे है, लेकिन मैं रिकॉर्ड मंडे को करती हूँ फिर। और इस वजह से कभी कभी मिसअप हो जाता है, और फिर मुझे ट्यूसडे रात को करना पड़ता है, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, यू गाइस आर स्टिल गेटिंग दिस पॉडकास्ट, एंड होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट, क्योंकि अब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है बताने को। अब मैं एक मजे की एक और बात बताती हूँ। कल की पॉडकास्ट में मैं बता रही हूँ कि यार मेरे मेरे तीन इस हफ्ते के 3 प्लान्स हैं फ्रेंड्स के साथ, और वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट प्लान बनाए हुए हैं, और आई एम मैनिफेस्टिंग कि उनमें से 2 प्लान तो कैंसिल हों। और मजे की बात ये है कि वो तीनों के तीनों प्लान कैंसिल हो गए। तीनों, 2 प्लान कैंसिल हुए, और एक प्लान मैंने खुद एक्सक्यूज किया कि यार आई माइट नॉट बी एबल टू कम, क्योंकि मुझे किसी और प्लान को पहले प्रायोरिटाइज करना था। लेकिन वो प्लान भी कैंसिल हो गया, दूसरा प्लान भी कैंसिल हो गया, तो जिसकी मैंने एक्सक्यूज की थी उस प्लान को मैं अब कहूंगी कि या आई कैन कम। तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग, दैट मेड मी सो हैप्पी। और इवन दो आई लव हैंगिंग आउट, मुझे इतनी खुशी होती है बाहर जाके दोस्तों से मिलके हैंग आउट करके, लेकिन इस निकलना इज सो डिफिकल्ट मेरे लिए घर से, कि उस वो जो हैसल उस चीज में होती है ना, और जो मुझे कन्वीनियंस का सोचना पड़ता है आना जाना कैसे करना है, तो मैं उस चीज की वजह से कहती हूँ कि यार ठीक है ना ही हो, मुझे खपना ना पड़े बस। तो दैट्स द थिंग, इस वजह से मैं खुशी होती हूँ कि जब कैंसिल हो जाए। लेकिन स्पीकिंग ऑफ हैंग आउट एंड स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज अबाउट फ्रेंडशिप। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप, इट्स अबाउट हाउ टू मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप, गुड हेल्दी फ्रेंडशिप, हाउ टू enjoy फ्रेंडशिप, और इट्स एवरीथिंग अबाउट फ्रेंड्स। क्योंकि आई डू थिंक दैट आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद इट, क्योंकि आई एम 22.5 years old, तो आई स्पेंट माई होल स्कूल लाइफ, आई स्पेंट माई होल यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ भी, और मैं, I cannot remember when I last had a fight with any of my friends. It
ऑलवेज हैव बिन सम मिसअंडरस्टैंडिंग और किसी और का ड्रामा, लेकिन इट्स नेवर बिन मी हु हैव डन समथिंग, या फिर किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा हो जिसकी वजह से मेरी दोस्ती किसी से टूट जाए या मेरी किसी से लड़ाई हो। तो वो चीज़ अ ब्लेसिंग आई थिंक। और ऑब्वियसली मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी क्रेडिट दूंगी कि दे हैव बीन मतलब कि वेरी नाइस एंड वेरी सपोर्टिव एंड वेरी लविंग ऑल द टाइम। लेकिन आई डू थिंक कि आई डू नो हाउ टू डील विद फ्रेंडशिप्स नाउ एंड हाउ टू मैनेज फ्रेंडशिप्स, इवन दो इट्स नॉट समथिंग यू शुड मतलब कि जिस पे स्ट्रेटेजिक कोई मैनेजमेंट होती है, लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड डू ताकि आप खुद भी पीसफुल रहो और आपकी दोस्तियां भी बरकरार रहें और आप इंजॉय करो और स्ट्रेस ना करो अपनी दोस्तियों के बारे में। मैं बहुत सुनती हूँ कि लोगों के फ्रेंडशिप ब्रेकअप होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। फिर सेकेंडली एक तो मेरी कभी किसी दोस्त से ऐसे लड़ाई या कोई ड्रामा उस तरह नहीं हुआ। दूसरा ये कि हाँ मेरे आई नेवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नेवर वेंट थ्रू अ रियली आई नेवर रियली वेंट थ्रू अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप। यस देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई वाज क्लोज विद जिनसे अब मेरी बात नहीं होती, लेकिन आई नो कि अगर मैं उनको कल मैसेज करूंगी तो हम उतने ही अच्छे तरीके से बात करेंगे एक दूसरे से। दिस इज़ वेरी नेचुरल कि आपकी उनसे बात खत्म हो जाए, आप लोग एक टाइम पे एक साथ एक जगह पे थे लेकिन फिर वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए, तो इस वजह से डिफरेंसेस आ गए। लेकिन इट्स नेवर लाइक कि कोई बहुत बड़ा ह्यूज ड्रामा हो जिसकी वजह से मैंने उस बंदे से बात करना छोड़ दी या उस बंदे ने मुझसे बात करना छोड़ दी। तो इस वजह से आई थिंक कि आई शुड बी टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स। मैंने वैसे पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि आई टॉकिंग अबाउट स्टेज एंजाइटी और स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने पिछली ही एपिसोड कॉन्फिडेंस के बारे में की है। तो आई थॉट इट वुड बी नाइस इफ आई कुड मिक्स अप द टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ डूइंग सीरीज ऑफ वन सिंगल टॉपिक, क्योंकि कुछ जब सीरीज करते हो तो बहुत सी पिछली पॉडकास्ट में जैसे मैंने कॉन्फिडेंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस में बोली थी, शायद उनमें से दो तीन बातें मैं स्टेज कॉन्फिडेंस पे बोलूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स नाइस अगर मैं बीच में दो तीन कोई और टॉपिक की पॉडकास्ट करूँ और फिर वो करूँ, ताकि कोई अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो ये ना हो कि वो 3 एपिसोड स्किप कर दे मतलब, और फिर वो कभी दोबारा सुने ही ना, वो भूल जाए ब्राउन करेट्स के बारे में। तो इस वजह से आई हैव टू मिक्स थिंग्स अप, लेकिन आई होप दिस gonna be a really exciting episode for you all. I am very excited for it. We'll take a break and then I'll come back and we'll talk about it and we'll have fun. Wow, it's 12 a.m. and I'm on the top of my energy, which is very exciting. एक और बात मैं ऐड करूंगी, I just started a new Korean drama and I started last week. मैं इतनी ऑब्सेस्ड बिंज वॉच हूँ, मैं रोज का बहुत थोड़ा पार्ट देखती हूँ और मैं उस ड्रामे का रोज आध एक एपिसोड जो है इट्स द वन एपिसोड इज अबाउट एन आवर, तो मैं रोज आधी एपिसोड देखती हूँ विच इज हाफ एन आवर। हेल्दी वॉचिंग हैबिट, आई कांट बिंज वॉच और मेरे पास टाइम भी नहीं होता बिंज वॉच का, क्योंकि मतलब कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माई हाउस कि मैं सुकून से बैठ के कुछ नहीं देख सकती 10 घंटे। ये नहीं है कि मैं 5 घंटे कुछ देखती रहूं और कोई मुझे बुलाए भी ना। हाँ रात को मैं देख सकती हूँ लेकिन आई डोंट रियली इंजॉय वॉचिंग थिंग्स एट नाइट। लेकिन मैं हैप्पीनेस जो है वैसे मैं रात को ही देख रही हूँ ये ड्रामा, लेकिन मुझे नहीं वो अर्ज होती कि रबिया थोड़ा और देख लो फिर सो जाना या पूरा देख के सोना। मुझे होता है नहीं, मुझे सुबह उठने टाइम पे ये काम करने हैं, तो इस वजह से मैं इस हिसाब से आई एम अ हेल्दी वॉचर कि आई नो कि मुझे कितनी एपिसोड देखनी है और उसके बाद मुझे सोना है। लेकिन आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट ड्रामा। एक तो दैट्स माय फेवरेट जॉनरा, सस्पेंस थ्रिलर। इट्स द थर्ड कोरियन ड्रामा आई एम वॉचिंग। आई लव दैट शो। एक तो वो इंस्टेंट हुक में हो गई पहले 10 मिनट में ही। दूसरा ये कि द प्लॉट इज सो अमेजिंग, द केमिस्ट्री इज सो अमेजिंग, एंड देन अगेन इट्स माय फेवरेट जॉनरा, सस्पेंस थ्रिलर। आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट सस्पेंस थ्रिलर, आई लव वाचिंग सस्पेंस थ्रिलर और उसमें थोड़ी सी स्लो बर्न रोमांस हो अगर नीड का तो शेफ किस। मेरे दो ही फेवरेट जॉनरास हैं, एक सस्पेंस थ्रिलर है और एक जो है वो पीरियड हिस्ट्री ड्रामा है। और मुझे लगता है मेरी और भी मुझे थ्रिलर वैसे ही पसंद है, बेशक वो सस्पेंस थ्रिलर हो, बेशक वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो, बेशक वो एक्शन थ्रिलर हो, बेशक वो मिस्ट्री थ्रिलर हो। तो और थ्रिलर में बहुत मतलब के वेरिएशंस हैं तो, लेकिन आई थिंक कि सस्पेंस थ्रिलर इज माय फेवरेट। जो मेरा फर्स्ट कोरियन ड्रामा था विंसेंजो, दैट वाज आल्सो a thriller, that was I guess that was also a suspense thriller, वो भी बहुत अच्छा था।
और ये भी बहुत अच्छा है। और इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग कोरियन ड्रामास, क्योंकि मैं अपनी मतलब कि बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल 22 ईयर्स मैंने कोई कोरियन ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि मुझे यही लगा कि यार मैं किसी और लैंग्वेज में कोई ड्रामा देख नहीं सकती। लेकिन इफ़ यू हैवंट वॉच अ कोरियन ड्रामा अभी तक, तो आई वुड रियली हाईली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच। और यू कैन वॉच हैप्पीनेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा। पहली बात तो ये कि कोरियन ड्रामास आर एक्चुअली सो मच बेटर देन वेस्टर्न ड्रामास जो कि नेटफ्लिक्स पे आते हैं, या अमेरिकन ड्रामास। और दूसरी बात ये कि यू विल हैव फन, यू वॉन्ट रिग्रेट, एंड आई थिंक दे आर वे अहेड, दे आर बियॉन्ड amazing, or they're way ahead than any west मतलब than the western shows. Or you should really watch, you're missing out if you're not watching Korean shows, so do watch them. I want to watch more content of more countries. I want to watch French, I want to watch Iranian, I want to watch Persian। और कोरियन की ज़्यादा हाइप है। टर्किश मैंने देखा हुआ है, टर्किश मैंने देखा हुआ है, और आई डोंट वांट टू वॉच। अगर कोई बहुत अच्छा आ जाता है तो सही है, लेकिन टर्किश ड्रामाज आर टर्निंग इनटू इंडियन ड्रामाज। मैंने हमेशा से बोला है कि टर्किश ड्रामा जो है वो इंडियन ड्रामा का एक मॉडर्न वर्जन है। देयर आर वेरी लेस ड्रामाज जिनसे आप कुछ गेन कर सकते हो। कोरियन ड्रामा मुझे पता है कि ऑब्वियसली आई कैन चूज द बेस्ट ड्रामाज। आई मतलब कि मैं सबसे बेस्ट ड्रामास पकड़ के देख रही हूँ, और बहुत बुरे भी हैं, तो यही तो अच्छी बात है कि यू कैन चूज द बेस्ट ड्रामा दैट हैव द 5 स्टार रेटिंग। और जो मैं देखती हूँ उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, प्लॉट बहुत अच्छा है, तो मैं इस चीज़ में बहुत हूँ कि, और आपको पता लग जाता है। आप पूछ सकते हो किसी से कि यार ये ड्रामा कैसा है, तो वो अच्छा ही होगा। तो इट्स लाइक कि यू कैन चूज टू वॉच समथिंग गुड, लेकिन आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर सिनेमा, और आई विल एंड आई लेट यू ऑल नो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट, और कोरियन ड्रामा सिनेमा मतलब कि सिनेमा तो नहीं कहूँगी क्योंकि देर आर नॉट मूवी, लेकिन कोरियन कंटेंट की बहुत हाइप है एंड इट्स वेल डिजर्व। दे आर सो गुड। मैंने अभी तक कोई रोम कॉम देखा नहीं है, क्योंकि रोम कॉम इज़ नॉट द जॉनरा आई पर्सनली लाइक। फॉर अ सीरीज, हाँ, फॉर अ 2 आवर मूवी, फॉर अ 3 आवर मूवी, आई वुड लव टू वॉच समथिंग रोम कॉम। लेकिन जब मैं कोई सीरीज देख रही हूँ तो आई वॉन्ट दैट लिटिल सस्पेंस फैक्टर इन इट, या फिर थोड़ा थ्रिलर हो, थोड़ा मतलब कि कोई जॉनरा और हो, और फिर रोमांस जो हो वो एक मतलब कि रोमांस भी थोड़ा साइड पे हो, लेकिन वो मेन जॉनरा ना हो उस चीज़ का। और मैं एक बात बताऊं, पर्सनली अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन जब मेन जॉनरा कुछ और होता है ना उस कंटेंट का, तो रोमांस जो होते हैं ना साथ, वो ज़्यादा मज़ा का होता है और केमिस्ट्री ज़्यादा होती है। आई डोंट नो, दैट्स माय ओपिनियन, लेकिन दैट इज़ एन ओपिनियन। और आई लव वाचिंग द लीड्स जो कि जिनका कोई प्रोफेशन हो और वो उससे हो। और फिर जैसे मैंने बात की, मुझे पीरियड प्लेस बहुत पसंद है और उनमें भी रोमांस होता है। तो और उनमें लिटरेचर मतलब कि मोस्टली लिटरेचर होता है, या फिर कोई हिस्ट्री होती है। तो वो कुछ लोगों के लिए दोज थिंग्स आर टू ड्राई, लेकिन आई एम पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि आई लव द सिनेमाटोग्राफी एंड द wardrobe और द मतलब, और मतलब कि इट्स अ गुड वॉच। मुझे पीरियड पर्सनली बहुत पसंद है, और आई लव द डायलॉग्स, वो सब कुछ, और आई लव हिस्ट्री। तो आई लव वॉचिंग किसी भी, इवन पाकिस्तान का या इंडिया का या अमेरिका का या स्पेशली यूरोप साइड पे, जो जो मतलब के वो दिखा रहे होते हैं अपने पीरियड प्लेस के ये कैरेक्टर इस जगह से बेस्ड है, तो आई लव वॉचिंग, क्योंकि आई थिंक इट्स सो गुड एंड इट्स सो प्रिटी। और कोरियन मैंने कोई पीरियड नहीं देखा, और मतलब कि लेट्स सी अगर मेरा दिल किया देखने का। लेकिन दैट्स इट, दैट्स नॉट, द शो इज नॉट अबाउट कंटेंट, लेकिन आई वाज जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि यू शुड वॉच हैप्पीनेस। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट ड्रामा। और इफ यू नो मी, or if we ever shared a show that you loved and I loved too, तो आई थिंक दैट यू विल लव हैप्पीनेस टू, अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा मुझसे सिमिलर है, और कभी हमने एक साथ कोई चीज़ फैन गर्ल की हो, या हम किसी चीज़ से एक साथ ऑब्सेस्ड हुए हो, तो आई थिंक दैट यू विल एंजॉय दैट ड्रामा। लेकिन दैट्स इट फॉर द दैट सेक्शन, the update section. लेकिन we'll move to our main topic in a short break. Let me take a sip of water and I'll come back. I'll see you guys.
talking about friendships and how to have a great friendship with people, have a great bond with people without stressing out about it, without going through the heartbreak and the stress that some friendships in university or high school cost. सबसे पहले तो I want to begin with the fact that के friendships are a beautiful and a very important part of one's life. आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं है। मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम अकेले हैं। और मुझ लेकिन वो हमेशा कभी भी कोई इंसान खुश नहीं हुआ, मतलब कि वो हमेशा इस चीज को ऐसे दुख की बात ही लेते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो आई थिंक यू आर ऑलवेज अ हैप्पी पर्सन व्हेन यू हैव फ्रेंड्स एंड यू हैव द पीपल you really love and you are feel happy to be with them. um I do think कि family members are also your friends. मेरे एक बहुत मतलब कि मेरी जो cousins हैं या और especially one of my best friend I तो वो मेरी cousin है, मतलब कि one of my bestest friend ever is my cousin. तो आई डू थिंक दैट मेरी बहन में मतलब आई वुड कॉल माई सिस्टर माई फ्रेंड, आई वुड कॉल माई मॉम माई फ्रेंड, आई वुड कॉल माई ब्रदर माई फ्रेंड, माई फादर माई फ्रेंड। तो आई थिंक कि इट्स नॉट लाइक कि आप दोस्ती सिर्फ उन लोगों से करते हैं जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। यू कैन बी फ्रेंड्स विद पीपल हु आर मतलब इन योर फैमिली। क्योंकि फ्रेंड आई थिंक विद फ्रेंड आई डोंट नो, आई शुड हैव लुक्ड अप फॉर द डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन आई थिंक एनी पर्सन you share a specific bond with or you share a emotional attachment with is your friend. और there are a lot of people in your family जो कि आप जिनको अपनी फैमिली तो बोलते हो लेकिन आपकी उनसे बनती नहीं है या आपकी उनसे बात नहीं होती, या यू डू नॉट वाइब विद देम, यू डू नॉट मतलब कि यू कैन नॉट स्टैंड विद देम, समटाइम्स यू हेट देम, लेकिन मतलब कि यू डोंट लाइक देम, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम और आपकी उनसे बात भी नहीं होती। यू कैन कॉल देम देयर योर फैमिली लेकिन दे आर नॉट योर फ्रेंड, राइट। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी बहुत बनती है, आपको बहुत मजा आता है, यू आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद देम, यू आर ऑलवेज हैविंग फन विद देम, यू लव टू मीट देम, यू लुक फॉरवर्ड टू मीट देम, एंड आई थिंक दैट इट्स फेयर टू कॉल देम फ्रेंड्स एज वेल। तो इस वजह से मुझे लगता है कि दोस्ती सिर्फ सिर्फ उन लोगों से नहीं होती जो आपके नॉन ब्लड रिलेशन, आपकी फैमिली में भी आप लोगों से दोस्ती होती है, विच इज़ वाई आई थिंक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई दोस्त नहीं है। um, इट्स मतलब मुझे लगता है कि किसी से फ्रेंडशिप और दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और वो आपको बहुत खुश रखती है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सक्सेसफुल तब हो जाऊंगी जब मैं अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे सबसे कट ऑफ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे सोशलाइजिंग बंद करनी होगी क्योंकि ये फजूल चीज़ है और वेस्ट होता है इस चीज़ से। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लिव। आई थिंक इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप किसी इंसान से बगैर किसी ताल्लुक के अकेले नहीं रह सकते। आपको चाहिए कोई इंसान जो आपकी बातें सुने, आपकी बातों को वैलिडेट करे, आपको मशवरे दे। आप अगर दुख में आप उससे वो शेयर करो तो आपके दुख में शरीक हो सके, अगर आप खुश हो तो आप किसी को बताओ तो आपकी खुशी में खुश हो सके। तो आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है। पीपल नीड पीपल, ह्यूमन नीड ह्यूमन। यू कांट से कि आई एम गुड विदाउट एनीवन और मुझे किसी इंसान की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं अकेली ही रहूँगी। which um, which मतलब कि which is मतलब I think that you shouldn't need people, but also it's not, you shouldn't hate people, or there would be someone that you find comfort in, and it's मतलब कि it's important to have that person, and it's important कि अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई इंसान, आपको लगता है तो आप देखो। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है ना उनके पास ऐसे लोग होते हैं लेकिन वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उन वो अपनी को नहीं समझते कि वो मेरी दोस्त है अगर मेरी उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन या अगर कोई इंसान उनकी वो केयर कर रहा है तो वो उस इंसान को देखते नहीं है, या क्योंकि उनको होता है कि उनको अकेला रहना है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। तो आई थिंक वी शुडंट हैव दिस मेंटेलिटी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सोशलाइज नहीं करना क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम।
और मुझे अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, मुझे अपने प्रोफेशन पे फोकस करना है, मैं सीधे मुंह जाऊंगी, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ के मैं सीधे मुंह वापस आ जाऊंगी, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं करना, मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं करना, और मुझे लोगों से काम की हद तक बात लिमिटेड रखनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और अगर आपका है भी तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी से बनती होगी, तो वो भी मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप में ही इंक्लूड हो जाती है चीज़। लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिकली नॉन ब्लड फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो आपकी फैमिली में होती है मुझे लगता है दैट्स मोर स्ट्रॉन्ग, और उसमें बहुत सी बातों पे आप बर्दाश्त कर लेते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली मेम्बर्स, तो आप उनकी बातें बर्दाश्त कर लेते हो, और आप उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो, और आप उनकी बातों को प्रोटेक्ट, आप उनकी खामियों को प्रोटेक्ट भी करते हो कि नहीं, मैं किसी और के सामने अपने भाई की या अपनी कज़न की या अपनी बहन की बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो भी हैं वो मेरे हैं। लेकिन विद नॉन ब्लड फ्रेंडशिप अगर आपका किसी से ख़राब हो जाए, तो आप किसी और से जाके उस चीज़ की कंप्लेन भी करते हो, आप अपने दुख का इजहार भी करते हो, आप उनकी खामियां भी कभी कभी बता देते हो कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, क्योंकि वो उनमें इतना वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंदा जो है वो उस चीज़ की परवाह नहीं करता। तो इस वजह से इस पॉडकास्ट में मैं स्पेसिफिकली जो है वो नॉन ब्लड फ्रेंडशिप्स के बारे में बात करूंगी, वो दोस्त जो आपको आपके घर में आपके साथ नहीं रहते, और आपका उनसे जो है वो वाला ताल्लुक नहीं है, वो आपको या स्कूल में मिले हुए हैं, या आपके नेबर हैं, या आपकी अकेडमी में मिले हुए हैं, या बेबी आप ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, या आप यूनिवर्सिटी में मिले हुए हो, या वट एवर, या आपके जिम में साथ हो, या जो भी है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि a lot of people say कि we choose friendships or choose your friends wisely. I don't think that you can choose friendships. मुझे लगता है कि you don't choose friendship. आप क्लास में जाके नहीं डिसाइड कर सकते कि पिक कर सकते कि ये इंसान, इससे मैं दोस्ती करूंगी और यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग सोलमेट्स हैं। आप नहीं ये चीज़ चूज कर सकते। आई थिंक दैट कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी इंसान के साथ बैठते हैं, आपकी उनसे कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन आप लोग नहीं आपस में वाइब कर पाते, या आपकी नहीं कोई ऐसी चीज़ ढूंढ पाते जो आप दोनों में कॉमन है, जिस पे आप दोनों अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सको। कभी कभी आपको किसी से कॉन्वर्सेशन का मज़ा नहीं आता, तो आपकी अपनी फ्रेंडशिप, मुझे नहीं लगता यू कैन फोर्स फ्रेंडशिप। यस, यू कैन टॉक टू एवरी सिंगल पर्सन, और आप चूज कर सकते हो कि हाँ मैं इस इंसान से बात करती हूँ, लेकिन इवेंचुअली अगर आपकी उनसे नहीं बनती तो आप उनको नहीं अपना फ्रेंड रख सकते, और दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आई थिंक के फ्रेंडशिप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि ये मेरी फ्रेंड है और बस हम नंबर्स एक्सचेंज कर लें और हम अब फ्रेंड्स हैं, हम हैंग आउट करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। आई थिंक फ्रेंडशिप टेक्स टाइम। आप एक इंसान से मिलते हो, आप उनसे बातें करते हो, आहिस्ता आहिस्ता करके और बातें बढ़ जाती हैं, फिर आप नंबर्स एक्सचेंज करते हो, आप फिर व्हाट्सएप पे बातें करना शुरू हो जाते हो, फिर आप जो है वो कहते हो कि यार लेट्स हैंग आउट, लेट्स गो समवेयर आउट और इंजॉय करते हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके साथ बाहर फिरना शुरू हो जाते हो, और फिर आप उनकी फैमिली से मिलते हो, वो आपके घर आते हैं, आप उनके घर जाते हो, और आप फिर उनको, मतलब कि वो आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं कि आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए या आप इमोशनली अपसेट हो तो आप उनके पास जाके उनसे बात कर सको। ये चीज़ों में टाइम लगता है। आप पहले ही दिन किसी को अपना दोस्त बना लो और कोई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगले दिन आप उनको अपने सारे ट्रॉमास बता दो ज़िंदगी के, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग, एंड आई डोंट थिंक दैट यू शुड डू दैट। मैं सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि मैंने पर्सनली जो अपनी पूरी ज़िंदगी में चीज़ नोट की है कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप मोस्टली क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आपने पहले दिन किसी से इतनी को अपना इतना गहरा दोस्त मान लिया है कि आपने पहली मुलाकात में ही उसको अपने सारा कट्ठा चट्ठा खोल के बयान कर दिया है कि मेरे चाइल्डहुड का ये ट्रॉमा है, या मैं अभी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ, या मेरा इस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ था, मेरे साथ ये हुआ वो आपको पहली मुलाकात में ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी फ्रेंडशिप्स होती, मतलब कि मेरी इनिशियली जितने भी दोस्तों से फ्रेंडशिप हुई थी मेरी यूनिवर्सिटी में, हमने पहले 2 सेमेस्टर हमें नहीं पता था कि यार इसके कितने बहन भाई हैं, या इनकी फैमिलीज में क्या हो रहा है, या इसका क्या चाइल्डहुड, मतलब कि शायद मे बी शी हैव सम चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी, मतलब कि इसका किसी से इन पास्ट में शायद ब्रेकअप हुआ है, ये वो। और मुझे लगता है इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप एक ही दिन किसी से दोस्ती करके उसको सब कुछ नहीं बता सकते, और अगर कोई आपको अपना बताना शुरू हो गया तो मेरे लिए पर्सनली ये चीज़ ऑकवर्ड है
कि पहली मुलाकात में मुझे कोई अपने बारे में इतना कुछ बता रहा है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। लेट्स जस्ट हैव सम लाइट कॉन्वर्सेशन कि या व्हाट शो यू आर वाचिंग, या व्हाट फुटबॉल टीम यू सपोर्ट, या आर यू वाचिंग पीएसएल, तो पीएसएल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर व्हाट्स योर फेवरेट बुक। आई थिंक दैट इज द वे टू स्टार्ट अ फ्रेंडशिप। मुझे नहीं लगता कि आपको पहली ही बातचीत में बताने की जरूरत है कि वो या यू कैन टेल कि मेरे बाबा ये बिजनेस करते हैं, मेरी मम्मा ये काम करती हैं, या मेरी बहन इतने, मेरी बहनें हैं, मेरे इतने भाई हैं, या मैं इस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, मैंने ये फील्ड है मेरी, मेरा मुझे इस चीज़ का पैशन है। यस, मतलब कि आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन एकदम से पहली मुलाकात में एक इंसान को अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बता देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एंड आई डोंट थिंक कि दैट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप टू बी ऑनेस्ट लास्ट लॉन्गर। और अगर मेरे जैसा इंसान सामने बैठा हुआ है तो वो तो ज़रा ऑकवर्ड हो जाएगा और घबरा जाएगा और ओवरवेल्म हो जाएगा, और वो शायद फिर आपसे बात ना, मतलब कि मैं पर्सनली बहुत घबरा जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार मुझे क्यों बता रही हूँ, मतलब कि पहली मुलाकात है। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई बहुत पुरानी दोस्ती है और 1 साल बाद वो इंसान आपको वो कुछ बता रहा है, ये इवन आपको 3 महीने बाद बता रहा है, आपकी किसी इंसान से बहुत दोस्ती हो गई है, तो देयर इज अ बॉन्ड दैट यू शेयर, और उस आप पे ट्रस्ट करके एक इंसान आपको बता रहे हो और आप भी आगे से उस इंसान के लिए वो फील कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट्स, मतलब कि तो वो जिस इंसान को आप पहली मुलाकात में अपने सारे सीक्रेट्स बताना शुरू हो गए हो, वो इंसान उस चीज़ को वैल्यू करेगा, क्योंकि दे बेयरली नो यू, दे जस्ट मेट यू। तो आई थिंक सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम पहले ही दिन किसी को दोस्त बना के उनको अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं, जबकि हम वो अभी तक वो शेयर नहीं कर रहे उनके साथ, वो बॉन्ड, ठीक है, वो कनेक्शन अभी हमारा उनके साथ डिवेलप बस हो रहा है, और हम पहली मुलाकात में उनको अपना सब कुछ बता रहे हैं। तो मुझे लगता है दैट्स अ बिट, दैट रियली लीड्स, तो अगला इंसान, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग दैट रियली आई हैव विटनेस्ड इन सम फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, कि आपने पहले ही दिन उस इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। और मैंने ये यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन चीज़ है कि आप पहले ही दिन किसी से मिलो और आप उसके साथ पिक्चर्स लगाना शुरू हो जाओ कि बेस्ट फ्रेंड ये वो फला फला। नहीं, गिव इट सम टाइम, पहले बात करो, देखो इफ यू गाइस वाइब, फिर आप अपनी, मतलब कि आप पेरेंट चीज़ों के बारे में बात करो ना। talk about your favorite shows, or maybe your favorite outfits, or maybe your favorite designers, or maybe your favorite, मतलब there would be something common with you guys, between you guys, उसके बारे में बात करो। फिर आहिस्ता 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 फिर बताओ। एकदम से मुझे नहीं लगता आपको किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि आप पहले ही मुलाकात में उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दो। एंड इट टेक्स टाइम। मेरे जितने भी अभी भी क्लोज दोस्त हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका दैट आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, लेकिन मुझे शायद नहीं पता कि उनके डीपेस्ट डार्केस्ट क्या सीक्रेट हैं या क्या है, और दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बहुत से लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको मेरा नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको जो भी आपके, मुझे पर्सनली लगता है कि आपको अपने फैमिलीज इश्यूज जाके फ्रेंड्स से नहीं डिस्कस करने चाहिए, स्पेशली अपने, अगर आपको बस 1 साल हुआ है उन लोगों से मिले हुए। um, मुझे लगता है कि इट्स, और स्पेशली अगर वो अगला इंसान अपने फैमिली की कोई बात आके आपसे नहीं करा, मुझे इट्स ऑलवेज वियर्ड फॉर द अदर पर्सन। मैं जैसे हूँ, मैं कभी भी, मैं अब आके मुझे लगता है मेरी जिन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उनको मैं बता दूंगी कि हाँ मेरी आर्ग्यूमेंट हो गया मेरी मम्मा के साथ, या फिर मेरी बहन से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, क्योंकि जब भी मेरी अपनी फैमिली से लड़ाई होती है इट रियली इफेक्ट्स मी, और मैं हमेशा फिर आके रोती हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी में जब भी रोई हूँ मैं इस वजह से रोई हूँ क्योंकि मैं पीछे घर से लड़ के आई हूँ, क्योंकि तो इस वजह से मैं कभी कभी शेयर कर देती हूँ। लेकिन वो अब आके मुझे लगता है कि मेरा ऐसा बॉन्ड बन गया है अपने दोस्तों के साथ इतना, क्योंकि वो मेरे घर बहुत बार आए हैं, और मतलब अब इतना वो उनसे क्लोज हो चुके हैं कि अब मैं उनसे ऐसा कुछ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगता है कि पहले 5-6 सेमेस्टर्स तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाँ, उनको पता था मेरे बाबा क्या करते हैं, मेरा भाई क्या करता है, या फिर मेरी बहन किस क्लास में है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर कि क्या चल रहा है। और मुझे लगता है इट्स वेरी डेंजरस, आपको अपनी फैमिली का पर्दा रखना चाहिए। अपनी फैमिली की आगे बुराइयां अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं करनी चाहिए। और अगर, क्योंकि फिर आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली, आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली को हेट करना शुरू हो जाएंगे विदाउट एनी रीज़न।
या फिर वो आपकी बात आगे जाके किसी और को कर भी सकते हैं कि उसके तो उसकी फैमिलीज के साथ बड़े इशू हैं, और वो आपकी फैमिली है। समटाइम्स आप खुद उनके बारे में जो भी बात कर लो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा आके आपको अपने आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बोले ना, तो आपको आपको बुरा लगेगा। मैं बोल दूं कि हाँ मेरे माँ बाप मुझे इस जगह जाने की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन कोई आके कहे कि हाँ तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें परमिशन नहीं देंगे, उनको पता नहीं क्या है, ऐसे बहुत कंजर्वेटिव है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि तुम कौन होती हो मेरे पेरेंट्स के बारे में ये बोलने वाली। तो इसलिए मुझे लगता है कि डोंट, मतलब कि स्पेशली अगर आपकी किसी से बहुत इनिशियल दोस्ती है तो उनको आके अपने घर वालों की ना बुराइयां किया करें, अपने माँ बाप की ना किया करें, अपने बहन भाइयों की ना किया करें। अगर आप अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स के सामने प्रोटेक्ट नहीं करें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर जिस इन जिस कि आप इतने सगे बन रहे हो और उसको आप अपने सारी फैमिली के बुराइयां कर रहे हो, कल को अगर आपकी उस बंदे के साथ खराब हो गई तो आप उसकी बुराइयां किसी और से जाके भी कर सकते हो। और इवन मतलब कि मतलब कि अगर आप वो दोस्त हो जिससे को एक इंसान आके अपनी फैमिली के सीक्रेट्स बता रहा है, आप ये सोचो कि अगर ये अपने भाई की इतनी बुराइयां कर रही है मुझसे, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि उसका भाई बहुत बुरा, मतलब कि बहुत अच्छा होगा और वो फजूल में करिए। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद फैमिली का बहुत बड़ा कसूर हो और वो उसको कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मुझे पहली मुलाकात में कह रहा है कि मेरा भाई ऐसा 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 है, मेरे बाबा ने मेरे साथ ये किया, और वो इतनी बुराइयां कर रही है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि कल को मेरी बुराई वो जाके किसी और से नहीं कर लेगी। और मुझे पता है कि किसी कुछ लोगों के साथ बहुत, मतलब के चाइल्डहुड दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमास चाइल्डहुड के, और इट्स वेरी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इट्स बेटर कि आप किसी जाके आप प्रोफेशनली थेरेपी, प्रोफेशनल हेल्प हेल्प सीख करो। मुझे नहीं लगता कि आपको पहली मुलाकात में या इवन पहले साल अपनी दोस्ती की अपनी वो चीज़ें किसी फ्रेंड को बताने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड बने, ऐसा कुछ शेयर को वो अगला इंसान भी आपको अपने बता रहा हो तो आप मतलब कि शेयर करो, और एहतियात से करो। लेकिन मैं पर्सनली आई वुड रियली 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 रिकमेंड यू ऑल के आप अपनी फैमिली की बुराइयां अपने दोस्तों से मत किया करो। बातें कभी कभी हल हो जाती हैं। मुझे इतना मुझ मैं इतनी बार विटनेस कर चुकी हूँ ना, मेरी बहुत सी ऐसी दोस्तें हैं वो कहेंगी ओ मेरे बाबा ने ये कर दिया वो कर दिया, उनके अब उनके मतलब के वो एक चीज हुई थी, लेकिन उसके अगले दिन वो चीज उनकी अपनी फैमिली से सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे जहन में इमेज बन गया ना कि यार इसके तो बाबा ऐसे हैं। तो मुझे लगता है कि आप खुद बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन दूसरा इंसान फिर जब आपके माँ बाप के बारे में या बहन भाइयों के बारे में बोलोगे, आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी फैमिली की बुराई करनी चाहिए अपने फ्रेंड से। और सिमिलरली मुझे लगता है कि फ्रेंड्स की भी बुराई फिर फैमिली से ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग करते भी नहीं हैं अपने फ्रेंड्स की बुराई, क्योंकि दे ऑलवेज वुड प्रोटेक्ट देयर फ्रेंड्स। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि आप अपने ना दोस्तों को ज़्यादा सगा समझना शुरू हो जाते हो, और आप आके अपने, मतलब कि अगर आपकी कोई भी लड़ाई हुई है कि मेरी मामा इस चीज़ को समझ नहीं रही, बाबा नहीं समझ रहे, आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ गुड वे टू टेल योर फ्रेंड्स, ताकि वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकें। वरना फिर वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म दोस्ती है तो ऑब्वियसली आपको फिर वो आपके काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एक पॉइंट पे आके बन जाते हैं। सिमिलरली आई थिंक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको अपने रिलेशनशिप का हर कट्टा छट्टा जाके अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहिए। मैंने बहुत बार, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप वो रखना चाहते हो, ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमने एडवाइस लेनी है, या फिर जो है वो हम एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे मुझे पता, मतलब कि अपनी फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली बताना सही है, लेकिन हर चीज़ जो आप एक एक रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप से बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप किसी इंसान, बेशक वो आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड, आप उससे किसी और तरह का बॉन्ड शेयर कर रहे हो, और उसकी हर हर चीज़ किसी और को बताना, बेशक वो आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लगता है दैट वुड डैमेज योर रिलेशनशिप। और आई थिंक यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर पार्टनर जो भी है, और आपको उस अपनी फ्रेंडशिप में ज़्यादा अपने पार्टनर की बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपका किसी पे अगर छोटा मोटा क्रश है या किसी से आप बहुत इनिशियल टॉकिंग टर्म्स पे हो, तो आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि आपको एडवाइस मिलेगी, ये मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से बहुत डीपर लेवल रिलेशनशिप है, तो आई डोंट थिंक कि आपको अपने फ्रेंड्स को हर चीज़ बतानी चाहिए। आई थिंक यू शुड प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। हाँ। और बहुत सी आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, आई थिंक दैट
ये कोई और मतलब कि ये मैंने रिलेशनशिप के टॉपिक में भी कहना था, लेकिन आई थिंक आप उस इंसान को जानते हो और आपका उससे वो बॉन्ड है, आपके फ्रेंड्स वो वैसा नहीं देख पाएंगे, तो कभी कभी आपके दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है उस चीज़ को, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। समटाइम्स इट्स हेल्पफुल, समटाइम्स इट्स डैमेजिंग, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान से ऐसे किसी भी किस्म का बॉन्ड शेयर कर रहे हो, और आपको, मुझे नहीं लगता कि उस हर चीज़ हर डिटेल जो है वो अपने दोस्तों को बताने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ में एडवाइस नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें जिसमें आप खुद भी लीड कर सकते हो खुद को। तो दैट्स दैट। देन समथिंग दैट आई रियली हैव सीन अगेन इज दैट कि हम बहुत बात करते हैं कि ओ मेरी ये प्रायोरिटी है, ये मेरा फ्रेंड, लेकिन वो मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ। और दिस इज समथिंग आई पर्सनली स्ट्रगल्ड विद टू। बिल्कुल इनिशियली मेरे यूनिवर्सिटी के इनिशियल बिल्कुल शुरू के दिनों में, बिल्कुल फर्स्ट महीने में, उसके बाद मुझे सबक मिल गया और उसके बाद मुझे पता लग गया कि रबिया हाउ यू हैव टू डील विद दिस। आप कहते हो कि यार ये इंसान मुझे इतनी, मैं इस इंसान को इतनी एनर्जी दे रही हूँ, मैं इस इंसान से इतना प्यार कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे वापस वापस उतना प्यार नहीं कर रही, या मुझे वो अटेंशन नहीं दे रही, या मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है लेकिन इसकी मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, इसके तो और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। तो इसका सिंपली ये है, तो आप भी उस इंसान को बेस्ट फ्रेंड ना बनाओ। अगर कोई इंसान आपको, आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो दोस्ती में, और वो इंसान आपको वो चीज़ नहीं वापस दे रहा है, या आप उसकी, आप, कोई इंसान आपकी पहली प्रायोरिटी है, आपको लग रहा है कि आप उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं हो, तो आप भी उस इंसान को पहली प्रायोरिटी मत बनाओ। ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई इंसान आपको आपके हिसाब की एनर्जी नहीं दे रहा, जैसे आपने अपने किसी दोस्त का सरप्राइज बर्थडे प्लान किया और वापसी पे आपकी दोस्त ने आपका बर्थडे प्लान नहीं किया, तो आपको नहीं ज़रूरत कि आप अगली बर्थडे उसकी प्लान करो। मुझे लगता है कि जो इंसान आपको जितनी एनर्जी दे रहा है ना, आपको वही उसको रिटर्न में देनी चाहिए, और आपको ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई दोस्त आपका, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो लेकिन वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, और उसके और बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए उसको बेस्ट फ्रेंड कहना या उसको बेस्ट फ्रेंड मानना। ठीक है? इट्स ओके। आप, ऐसा नहीं होगा ज़िंदगी में जिसमें आप हर किसी की पहली प्रायोरिटी हो, या किसी एक इंसान की। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को बहुत क्रेव करते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी हम पहली प्रायोरिटी हो। मुझे लगता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे या जब आप शादी करेंगे, उस इंसान की आप ऑब्वियसली होंगे। अपनी पेरेंट्स की आप पहली प्रायोरिटी हैं, अपने सिबलिंग्स की भी आप शायद पहली प्रायोरिटी हो सकती हैं, लेकिन फ्रेंडशिप्स में आई हैव बिन देयर डन दैट। मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी किसी एक इंसान से, मतलब कि हम पूरा ग्रुप है और उसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनमें से एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या बहुत ऐसा हुआ है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, तो आई सिंपली, अगर मैं किसी की नहीं हूँ तो मेरा भी कोई नहीं है। इट्स as simple as that. This is something that I learned in the very initial days of my first semester, कि रबिया, if no one, if you are no one's priority, तो no one is also your priority। जो जिस हिसाब का आपको कर रहा है, आपने उस इंसान को उस हिसाब का रखना है। ठीक है? ज़्यादा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो आपको जितना कर रहा है, जो आपको जितनी अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, आप भी उसको उतना लाओ। अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो तो वो ये चीज़ फ़ील करेगा और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाएगा, और आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना शुरू हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा, आपको फ़ील हो जाएगा, और फिर आप उसके लिए उतनी कर सकते हो। लेकिन अगर जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो होता है कि वो कहेंगे शुक्र है, ठीक है, इसने भी कम कर दिया, मतलब कि आई डोंट रियली केयर, दे वोंट बॉदर। तो इस वजह से मुझे लगता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पे स्ट्रेस करना छोड़ दो कि यार मुझे कोई नहीं हैंग आउट सीन के लिए पूछता, नहीं पूछता ना पूछे, आप भी उनके साथ ना हैंग आउट करो। अगर, और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि हम ना कभी कभी कहते हैं कि यार मुझे फोमो हो रहा है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, मैं मिस आउट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, अगर आपकी इम्पोर्टेंस है तो वो इम्पोर्टेंस कोई और इंसान पूरी नहीं कर सकता। और फिर जब भी कोई हैंग आउट होगा ना, अगर आप उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हुई तो आपको पूछेंगे। अगर उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो आपको मिस आउट नहीं फोमो होना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है? और दैट इज ओके। Instead of stressing out about some people who don't even care about you or don't even enjoy your company, you should, मतलब कि you should put your energy on the people
हु डू, और ऐसे लोग हैं जो आपको करते हैं. देयर वुड बी अ फ्रेंड मे बी बैक इन द स्कूल डेज जिनसे आप बहुत अच्छा है, तो आप अपनी एनर्जी फिर उन लोगों को दो जिनको इसकी जरूरत है और जो इस चीज को वैल्यू करते हैं और जो आपका टाइम और एफर्ट चाहते हैं. ठीक है. आई थिंक दैट मैं पर्सनली मतलब कि मैं बहुत होती थी कि यार मतलब मुझे मुझे बहुत जेलस थी, मैं इनसिक्योर भी थी, मैं जेलस भी थी कि यार मैं किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ. नो वन वांट्स टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा कोई इतना कोई क्लोज दोस्त नहीं है, मेरा कोई सोलमेट टाइप नहीं है. और मैंने कहा रबिया इट्स फाइन, इट्स ओके. और मैंने उन मतलब कि हर किसी को उसके हिसाब से लेके चलना शुरू हो जाए कि इस इंसान के लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए ये इंसान. और दिस इज नॉट समथिंग कि मैंने कहा मतलब कि मैंने जहन में सोचा कि आई हेट दैट पर्सन क्योंकि दे आर नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी. इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई स्टिल लव देम. और मुझे मतलब कि मेरी उनसे वैसे ही दोस्ती है. इट्स नॉट अ विकेड थॉट कि हाँ ठीक है इसकी और बेस्ट फ्रेंड है तो इसकी मैं नहीं हूँ, नहीं. इट्स जस्ट दैट कि मैंने थोड़ा सा कम कर दिया. अगर उन्होंने मेरी तरफ और अगर वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो मैं भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले लूंगी उनकी तरफ. आई होप ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग सेंस एंड आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है. पर्सनली मैं इतनी इनसिक्योर हो गई थी ना कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहेगा. मेरे में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मुझसे दोस्ती करना चाहिए. मुझे लगता है कि स्कूल बचपन से लेकर मिड यूनिवर्सिटी तक मैं इसी चीज़ से गुजरी हूँ कि मुझे लगता था कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता. और कोई मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहेगा क्योंकि आई एम नॉट दैट कूल. लेकिन जब मैंने लोगों को उसके हिसाब से रखना शुरू कर दिया तो मैंने ये चीज़ भी करना शुरू कर दी कि आई वुड ऑलवेज लेट पीपल टू अप्रोच मी इवन विद फ्रेंडशिप. क्योंकि मैं इतनी इनसिक्योर थी कि अगर मैं खुद किसी को करूं तो कोई क्यों करना चाहेगा. तो आई वुड ऑलवेज लेट पीपल टू चूज मी इंस्टेड ऑफ मी चूजिंग पीपल. इवन इट इज एज सिंपल एज के जब हमारी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन होती थी और ग्रुप्स बनते थे तो आई वुड ऑलवेज वेट फॉर समवन टू आस्क मी. क्योंकि आई वॉज सो स्केर्ड कि अगर मैं खुद किसी से पूछूंगी तो पता नहीं वो मेरे पास आते हैं कि नहीं आते. इवन मतलब कि कॉलेज में भी ऐसा ही है. तो मैं हमेशा की मैं उस चीज़ से इतनी इनसिक्योर हो गई थी ना कि कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता है, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसमें मैं कभी भी नहीं होंगी एक बंदी जिसको सारे ग्रुप में से कोई चूज करे या जिससे दोस्ती करना चाहे. आई एम नॉट दैट कूल, आई एम नॉट दैट फनी. मेरी कोई शायद कंपनी इंजॉय ना करता हो और मुझ शायद उन्होंने मुझे ऐसे ही अपना दोस्त रखा हो या फिर मतलब कि ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि स्पेशली स्कूल में मैं उस चीज़ से बहुत होती थी क्योंकि मतलब कि याद है शेयर्ड कि आई वॉज गोइंग थ्रू इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन स्कूल. तो उसके बाद यूनिवर्सिटी तक क्योंकि यूनिवर्सिटी के इनिशियल मैंने बताया कि मुझे लगता था कि ओ मैं इस इंसान की प्रायोरिटी नहीं हूँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन नहीं रहा. या मतलब कि मेरे जो जो ग्रुप बना है इनिशियली उनमें हर किसी का अपना अपना है. या फिर मेरा जो इनिशियली ग्रुप भी बना था यूनिवर्सिटी में उसमें मैं बड़ी अनवांटेड थी क्योंकि नो वन रियली वांटेड मी. दे जस्ट वांटेड मी बिकॉज दे वांटेड माय फ्रेंड टू बी इन दैट ग्रुप एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि मैं रबिया के बगैर ये ग्रुप नहीं ज्वाइन करूंगी. और दैट वाज रियली स्टूपिड. हम ना यूनिवर्सिटी जब एंटर हुए थे तो वी ऑल वर सो डेस्परेट टू मेक ग्रुप कि हम मतलब कि वी मेड अ ग्रुप. और जिसकी वजह से मैं कहती हूँ यू कांट चूज फ्रेंडशिप. आप नहीं पिक कर सकते, पिन पॉइंट कर सकते कि ये इंसान मेरे ग्रुप में आएगा. नहीं, आपका नेचुरली जिनसे बॉन्ड बन रहा है उसके साथ आपका खुद ही ग्रुप बन जाएगा. जिस वजह से हमारा जो पहला ग्रुप था दैट रियली टर्न्ड इनटू एशेस. और उसके बाद जो मेरा सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप बना वो अभी तक चल रहा है क्योंकि दैट वाज समथिंग जो नेचुरली बना. और हम नेचुरली जो मतलब कि मेरी जिन बंदों से कनेक्शन हुआ हम उनके साथ मतलब कि हम कनेक्ट किए और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और उसके बाद हम इतना क्लोज हो गए, हम हैंग आउट करना शुरू हो गए. तो फर्स्ट सेमेस्टर में वो जो मेरा इनिशियली ग्रुप बना था वो इसलिए बना था क्योंकि एक तो आई वाज अ लिटिल बिट गुड इन स्टडीज क्योंकि मैं क्लास में बड़ी एक्टिव थी. और मतलब कि हाँ नॉट लिटिल बिट आई वाज गुड इन स्टडीज. तो एक तो इनको ये था कि हाँ इससे हमने वो एडवांटेज लेना है. और मुझसे ना लोग समझना शुरू हो गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में कि ओ कैन यू कम एंड मतलब कि टेल अस अबाउट दिस टॉपिक, हमें ये समझा दो ये कर दो. तो इस वजह से एक ये एडवांटेज था कि ओ इस ये तो पढ़ने वाली बच्ची है इसको रख लेते हैं. सेकेंडली मतलब कि सब मेरी दोस्त बेसिकली दे वांटेड माय फ्रेंड टू बी इन द ग्रुप एंड शी वाज लाइक आई वांट बी
in the group without a beard, and I was so blinded by anything कि उस वक्त I didn't realize कि I'm unwanted basically in that group, or no one really want me. तो इस वजह से, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, फिर मुझे लगा कि मे बी आई एम नॉट दैट कूल, क्योंकि मुझसे कोई बात, मतलब कि मुझे कोई रखना नहीं चाहता. लेकिन फिर व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट थिंग कि जस्ट बी नाइस, बी काइंड, हर किसी से बहुत अच्छे से मिलो, लेकिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपको इतना इंपॉर्टेंस देगा, और अगर आप किसी की प्रायोरिटी नहीं है तो आप, कोई आपकी भी नहीं है. और हर किसी को उतना दो जितना वो दे रहा है, लेकिन स्टिल हैव फन विद पीपल. ऐसा नहीं है कि बस साइड पे कोने में जाके बैठ जाओ कि बस अब मुझसे कोई, मतलब कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, और मतलब कि हाँ तुम लोग मेरी प्रायोरिटी नहीं हो तो मैंने तो बात ही नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं है. बस मॉडरेट लेवल रखो, किसी को इतनी ओवर टेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला इंसान अगर आपसे चिढ़ गया तो मुझे लगता है दैट वुड बी मोर सैड कि वो आपको अवॉइड कर रहा है. तो इस वजह से इस स्टेज से आने से बेहतर है कि आप खुद ही उस इंसान की लिफ्ट कम कर दो. अगर उस इंसान को आपकी फिक्र हुई, वो खुद आपके पास आएगा. अगर ना हुई तो वो खुद आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा और गायब हो जाएगा. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग थ्रू दिस, क्योंकि आई पर्सनली वेंट थ्रू दिस. लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई सॉ पीपल wanting to be friends with me, which is I think it's such a good thing. मुझे इतनी खुशी होती है, और I am someone who's like oh my god really, और मैं फिर खुद भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि कोई इंसान is ready to give that effort for to me in friendship. और स्पेशली इन लास्ट सेमेस्टर आई थिंक कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं सीनियर भी हो गई थी, और फिर थोड़ी सी आई थिंक पर्सनालिटी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी चेंज हो रही थी, एंड आई वाज फन, आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और शुगर लग रहा था. तो आई थिंक आई रियली रियली सॉ people wanting to be friends with me and me becoming the kind of pop. I would like to think I was a popular girl in यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन लास्ट सेमेस्टर. और अब मेरे इतने फ्रेंड सर्कल्स हैं ना यूनिवर्सिटी में, मतलब कि आई हैव सो मेनी डिफरेंट फ्रेंड सर्कल. ये भी नहीं कि एक ही फ्रेंड सर्कल है मेरा, इतना कि एक ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है. मेरे इतने डिफरेंट है कि मुझसे अब संभाला ही नहीं जाता. इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग. और आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और इट्स ऑलवेज ओवरवेलमिंग कभी कभी, कि क्योंकि अब आके मुझे हैंग आउट करना पड़ता है. मेरे पास रोज अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि मैं रोज रोज मिल सकूं, which is something that should be my next topic I think. जब आप स्कूल में होते हो, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, कॉलेज में होते हो, मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी की ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि स्कूल में यू स्पेंड बेसिकली 10 years, और यूनिवर्सिटी में यू स्पेंड 4 years इन मतलब कि, और वो भी स्पेसिफिक प्रोफेशन में. कॉलेज बीच में इज़ लाइक जस्ट फॉर 2 years, और आपकी वो इट्स मतलब कि वो गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. तो बेसिकली, लेकिन आप जब इन इंस्टीट्यूशंस में होते हो और या फिर जॉब में होते हो, तो आप रोज जा रहे हो और किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका किसी से डेली बेसिस पे इंटरेक्शन लेवल है, और आपकी उनसे दोस्ती हो रही है, लेकिन आप रोज रोज मिल रहे हो उस इंसान से, तो आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो. लेकिन वंस मैं घर पे बैठ के रिमोटली काम करती हूँ, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, तो आई डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज टू मीट माई फ्रेंड्स एवरी सिंगल डे, विच इज़ वेरी सैड. और ग्रेजुएट जब मैं करी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये था कि maybe I'll lose the friendship I'll have now that we won't meet every single day. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. I don't meet my friend every single day and I have to wait a lot. के और मैंने लिटरली जैसे मार्च है ना, आई ऑलरेडी नो कि मैंने किस कौन, क्योंकि आई टोल्ड कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप है. तो मुझे शुरू में प्लान करना पड़ता है कि अच्छा इस हफ्ते ये, फिर शायद मैं गैप एक कर डाल दूँ, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप. लेकिन आई हैव रियलाइज्ड कि नो, इट्स नॉट लाइक कि आप जब एक जगह छोड़ दो तो आपकी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं. मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में जो एक्चुअली अभी यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन मैं खुद जब ग्रेजुएट हो गई थी मैं तब उनसे ज़्यादा क्लोज हो गई, और इट्स सो मच फन विद देम. तो इस वजह से, और अब मैं उनसे इतनी क्लोज हो गई हूँ, हालांकि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद उनसे क्लोज हुई थी. तो लेकिन अब इतना कनेक्शन है अच्छा है ना, आई लव मीटिंग देम, आई लव हैंगिंग आउट विद देम. तो इस वजह आई लुक फॉरवर्ड टू मीट विद देम. तो आई डोंट थिंक दैट इफ यू आर मीटिंग विद समवन ऑन डेली बेसिस सिर्फ आप उनके तभी अच्छे दोस्त हो. मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो दो, आई वुड से, आई वुड कॉल देम द बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि दे हैव सीन मी सिंस माई चाइल्डहुड एंड दे हैव सीन मी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माई लाइफ. तो वो दोनों जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स हैं मेरी.
एक जो है वो एक दूसरे शहर में रहती है, और एक जो है वो दूसरे शहर में तो नहीं लेकिन लाहौर के दूसरे कोने में रहती है, एंड आई डोंट गेट टू मीट देम एवरी सिंगल डे क्या मैं हर महीने भी नहीं उनसे मिल पाती। कभी कभी मीट लाइक वंस अ ईयर, कभी कभी मतलब कि इफ वी आर लकी तो वी कैन मीट ट्वाइस अ ईयर, और कभी कभी इफ वी आर दैट अनलकी तो हम मतलब कि वंस इन 2 ईयर भी ऐसा हिसाब हो जाता है, और मैं उनसे रोज बात भी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा यही होता है कि नहीं नहीं मिलके करेंगे मिलके, तो मेरी उनसे रोज बात भी नहीं हो पाती। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, आई डोंट नो कि वो क्या मतलब कि कभी कभी हम एक दूसरे को मतलब कि अपडेट देते रहते हैं, लेकिन दे आर नॉट, आई एम नॉट इनटू दैट इनटू, या मैं उन ये नहीं कह रही कि इवन दो दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि यार मैं उनके बगैर मर रही हूँ या फिर आई कांट लिव विदाउट देम। तो और still I share a beautiful bond with them, and I still call them my best friend, and I know and I hope कि they feel the same for me, I know they do। तो आई थिंक कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आप किसी से डेली मिल रहे हो तो वही आपका फ्रेंड है, और जब एक बार आपका वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप नहीं रहोगे। हाँ ऑब्वियसली जब आप किसी से डेली मिल रहे हो तो आपको एक इंसान की डेली अपडेट्स का पता लग रहा है, आपको उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट कर पाते हो, आप वीकली किसी से बात कर लेते हो, आप वीकली एक बार मिल लो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप कर रहे हो। अब a whole lot of my friends are working in the same office और मैं घर पे काम कर रही होती हूँ, तो obviously naturally they get to spend a lot of time together साथ में। और मुझे नहीं मतलब कि ऑब्वियसली मैं घर पे काम कर रही हूँ, मैं रोज उनसे मिल नहीं सकती। हम ट्राई करते हैं कि हम हफ्ते में एक बार मिल लें या फिर 2 हफ्ते में एक बार मिल लें, लेकिन ऑब्वियसली दे आर टुगेदर तो दे आर स्पेंडिंग सो मच मोर टाइम, लेकिन आई डोंट माइंड देम, आई एम दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ कि मैं माइंड नहीं करती कि या मुझे मिस आउट फील नहीं होता। वही बात है, क्योंकि आई नो माई इम्पोर्टेंस, आई नो कि यार मेरी अपनी जगह है, मेरी अपनी इम्पोर्टेंस है, और जब उनको मेरी याद आएगी तो वो मुझसे मिलेंगे, और इट्स ओके मतलब कि इट्स ओके इफ दे आर हैंगिंग आउट विदाउट मी, क्योंकि आई कैन नॉट कम और आई शुडंट बी कम, मतलब कि मैं आई शुडंट बी कम, आई शुडंट बी गोइंग एवरी सिंगल डे, एंड दे हैव देयर ओन मतलब के वो सब कुछ, तो इट्स ओके एंड आई एम फाइन विद दैट। और मुझे अब इस चीज़ का डर नहीं लगता कि यार ये लोग साथ हैं तो शायद इन लोगों का आपस में अच्छा बॉन्ड है, और मैं शायद मैं नहीं हूँ तो मतलब कि मेरा शायद उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके बॉन्ड खत्म हो जाए। मुझे उस चीज़ का डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि वही बात है कि आपने अगर आपको इंसान आपकी इम्पोर्टेंस है तो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और इट टेक्स अ टाइम टू बिल्ड दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। ऑब्वियसली इनिशियली पहले 1 साल में आपको वो थोड़ा होता है कि यार मुझे हर मीटअप पे जाना है, मुझे हैंग आउट करना है, क्योंकि शायद मैंने अगर मिस कर दिया तो मतलब कि मैं मिस आउट कर दूंगी प्लान, और फिर इन लोगों की ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ अरसे बाद फिर आप जब नहीं होते हो तो आपकी कमी महसूस होती है, और कभी कभी मतलब कि अगर आप नहीं जा सकते तो लोग मतलब कि कैंसिल कर देते हैं कि नहीं हमने इस बंदे बगैर जाना भी नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग यू शुड एक्सपेक्ट इफ यू कांट गो समवेयर, या आपके लिए मुश्किल है तो यू शुड ऑलवेज लेट योर फ्रेंड्स गो कि नो इट्स ओके, विदाउट द फियर कि यार मेरे बगैर ये लोग मजा करेंगे, आई वुड बी जेलस। हाँ ऑब्वियसली जेलसी होती है, लेकिन आई थिंक यू शुड बी इन पीस विद द फैक्ट कि यार आई कांट गो, दे शुड गो, और इट्स ओके इफ आई एम इम्पोर्टेंट फॉर देम, तो उनको मेरी याद आएगी, और आई कैन मेक मेमोरीज विद देम एट एनी अदर प्लेस। मेरे लिए अगर इनकन्वीनियंट है जाना तो मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, और मतलब कि इट्स नॉट वर्थ मी स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग कि यार काश मैं चली जाती, ये लोग ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, अगर वो ज़्यादा आपके बगैर क्लोज हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप उनके लिए कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, और इट्स ओके एंड दैट इज ओके। आई थिंक विद फ्रेंडशिप अगर आप रियलाइज कर लो कि आप एक इंसान के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो आई डोंट थिंक दैट इट्स दैट हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। मुझे लगता है विद इन रिलेशनशिप दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स। इन फ्रेंडशिप अगर आपको पता लग जाए कि यार आप नहीं किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट, और तो आप मूव ऑन कर जाओ, और आप मुझे लगता है कि आपको वो इंसान मिल जाता है जिसके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, और मतलब कि और अगर आपको नहीं भी मिलता ना, वन थिंग आई वुड से कि जैसे मैं हूँ ना,
जब से मैं ग्रेजुएट हुई, ऑब्वियसली आई डोंट गेट टू मीट माई फ्रेंड्स एवरी सिंगल डे, कभी कभी महीने में एक बार मैं मिल रही होती हूँ। लेकिन बात और मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं कहूँ कि ओ दैट पर्सन इज माई सोल मेट, कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है जिंदगी में हर छोटी डिटेल में उस इंसान को टेक्स्ट कर रही हूँ। येस आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी क्लोज विद मोस्ट ऑफ देम, और मेरा बहुत इमोशनल उनके साथ एक कनेक्शन है, और मुझे मज़ा भी आता है, और हम हैंग आउट भी करते हैं, और हम आपस में इमोशनल शेयर भी करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार इस इंसान के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। मैं रह रही हूँ क्योंकि आई हैव लर्न हाउ टू इंजॉय माई ओन कंपनी। तो अगर आपको लगता है कि ओ आप मेरा कोई बेस्ट 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 फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सोलमेट नहीं है, और हाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ मैं इंजॉय करती हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं रात के 3-4 बजे तक कॉल कर रही हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि वंस यू स्टार्ट इंजॉइंग योर ओन कंपनी, तो आपको फिर फील तो आपको खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है। एंड आई एम सम मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा कोई ऐसा सोलमेट टाइप दोस्त नहीं है, मेरे बहुत लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो कि मैं कहूँ बेस्ट 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 फ्रेंड ये मेरा सोलमेट है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, और आई वॉन्ट टू टॉक टू हर एवरी सिंगल डे, और आई वॉन्ट टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ हर लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू टेल माई लाइफ की अब एवरी सिंगल डिटेल टू हर। और मुझे मतलब कि डेली मिलने और मुझे मतलब कि हर चीज़ इसको बतानी है। इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव अ फ्रेंड लाइक दैट, आई डोंट हैव अ फ्रेंड लाइक दैट। और क्योंकि आई डू मतलब कि वर्क फ्रॉम होम, तो आई हैव स्टार्टेड टू लर्न हाउ आई कैन enjoy माई ओन कंपनी, एंड हाउ आई कैन स्टिल मेक माई लाइफ एक्साइटिंग विदाउट फीलिंग कि यार अगर मुझे मज़ा करना है तो मुझे अपने दोस्तों की ज़रूरत है। आई हैव स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू इंजॉय विद माई फैमिली, आई हैव स्टार्टेड टू इंजॉय माई सेल्फ। तो मतलब कि इवन विद फ्रेंड्स आई हैव सो मच फन, लेकिन आई एम नॉट मिजरेबल विदाउट देम। ओके, देन आई डू हैव सम हैंग आउट फ्रेंड्स टू। आई डोंट थिंक कि हर आपके अगर 10,000 तो नहीं, लेकिन अगर आपके 20 दोस्त हैं तो हर दोस्त से आपकी कोई क्लोज लेवल की दोस्ती होगी। आई मतलब कि आई डू हैव हैंग आउट फ्रेंड्स जिनसे मेरा इतना डीप लेवल वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है कि मैं अपने दुख की चीज़ें उनसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन वी डू हैंग आउट वंस अ मंथ एंड इट्स ऑलवेज सो मच फन एंड वी डू शेयर कनेक्शन। एंड इट्स ओके, आई थिंक कि आप हर किसी से वो नहीं कर सकते के साथ वो वाला नहीं ताल्लुक रख सकते, एंड इट्स ओके इफ यू हैव हैंग आउट फ्रेंड्स। आई थिंक इट्स मोर फन विद देम क्योंकि देयर इज लेस ड्रामा एंड देयर इज मोर इंजॉयमेंट विद देम। और आप उनके साथ हैंग आउट करते हो, शुगर लगाते हो घर मतलब क्या, और फिर आप एक नई जगह प्लान करते हो, फिर शुगर लगाते हो। आई थिंक दैट्स फाइन। जैसे मैं इमोशनल अटैचमेंट की बात करती हूँ ना, इनिशियली इनिशियली जैसे मैं अपने स्कूल के टाइम या फिर यूनिवर्सिटी में इनिशियली आई मैंने जैसे कि बताया ना कि आई वाज इन द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कोई मुझे क्यों अपना दोस्त बनाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील कराया गया था डिफरेंट इवेंट्स पे कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मुझे ये भी होता था कि कोई मुझसे अपने सीक्रेट नहीं शेयर करता था इन कॉलेज इन स्कूल इन यूनिवर्सिटी, मतलब कि करते थे, लेकिन आई वॉज नॉट समवन के कोई जाके कहे कि यार मेरे साथ ये हुआ है या वो हुआ है, या फिर वी नीड। और मुझे मुझे ना बहुत इंसल्ट फील होती थी कि मे बी आई एम नॉट दैट, मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मुझसे ये अपनी कोई बात शेयर करे, और मेरे पास खुद कुछ बताने को होता नहीं था। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ओपन बुक, तो मेरी हर चीज़ हर किसी को पता होती थी। तो इस वजह से मेरे पास कुछ होता नहीं था, तो मैं कहती थी शायद मेरे पास कुछ बताने को नहीं है तो कोई मुझसे भी नहीं बात करता, लेकिन आई वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स होता था मुझे, और बहुत मैं मतलब कि ऐसी चीज़ें मैं फील करती थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने थोड़ा सा मतलब कि लर्न किया कि एक इंसान को उसके हिसाब में रखो। हाँ, आप ज़रूरी नहीं है आपका हर किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन हो। कुछ लोगों के साथ आपकी बस सलाम दुआ वाली दोस्ती होगी, कुछ लोगों के साथ आपकी बहुत क्लोज दोस्ती होगी, कुछ लोगों के साथ आपकी ऐसी दोस्ती होगी कि आप एक दिन मिले और दूसरे दिन मतलब कि नहीं एक साथ एक उससे मिल पाए। और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और आपको फोर्स नहीं करनी चाहिए फ्रेंडशिप, जिससे आपका नेचुरली बॉन्ड बन रहा है। और देखो कि कौन आपकी तरफ एफर्ट पुट कर रहा है, फिर आप वापस उसकी तरफ एफर्ट करो। जब मैंने ये चीज़ें सीखी ना, एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने देखा कि यार आई हैव टू बी काइंड, आई हैव टू बी हैप्पी विद फ्रेंडशिप। मतलब कि ये नहीं है कि मैं रुस के बैठ जाऊँ फजूल में,
तो मुझे हर मतलब कि मुझे अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे मतलब कि मतलब कि आई वुड ट्राई कि मेरी तरफ से भी इट्स द बेस्ट टाइम फॉर देम, और मेरी कंपनी सब इंजॉय करें। और कंपनी इंजॉय करने का मतलब यही है कि आप ज़रा खुशी से मिले सबसे, और अच्छे से मिले, सबको कॉम्प्लीमेंट्स दें, सबको सपोर्ट करें। आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लेट द अदर पर्सन स्पीक, कि उनकी सुने, ज़िंदगी की बात या उनका पर्सपेक्टिव सुने, उनको अप्रिशिएट करें, उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उनको सपोर्ट करें, उनसे उनके बारे में सवाल पूछें। तो आई थिंक दैट आर द थिंग्स। मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव टू। मेरा इस चीज़ पे बहुत बड़ा मानना है कि कभी कभी आप, ऑब्वियसली मैंने अभी बोला है कि आपको एफर्ट डालनी पड़ती है, आप और आप खुद देखोगे कि वो इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि एफर्ट वो वाली डालो, वो यही है कि अगले बंदे को डालने दो, और आप नेचुरली आपको पता लग जाएगा कि कोई इंसान, कौन इंसान आपसे दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है ना कि कोई इंसान आपको करना चाह रहा है, फिर आप उसको अपना फुल दो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान नहीं करना चाह रहा, बट स्टिल ग्रीट देम नाइसली, बिल्कुल ना उनसे सड़ जाओ और बात ही ना करो और इग्नोर कराओ, जितनी वो आपको लिफ्ट करा रहे हैं उतनी कराओ, लेकिन अच्छे दिल से कराओ। तो जब मैंने ये चीज़ें सीखी ना कि आई कैन स्टिल बी द बेस्ट पर्सन, लेकिन मैं कि हर इंसान को उसके हिसाब में रख सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड सीइंग कि यार लोग अब मुझ मतलब कि आई स्टार्टेड सीइंग कि पीपल वांट टू टॉक टू मी। आई थिंक देयर वाज अ मेजर पर्सनालिटी ग्रूम टू। और लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, आई एम काइंड ऑफ मतलब कि नाउ पीपल डू वांट टू टॉक टू मी एंड डू वांट टू बी माय फ्रेंड। और मैं एक बात बताऊं, फिर मैंने देखा कि मेरे दोस्तों से जब मेरी गहरी लेवल की दोस्ती हो गई और कोई मुझसे अपने ट्रॉमास शेयर कर रहा है या कोई मुझे अपने ऐसी चीज़ शेयर कर रहा है जिस पर उनको मेरी एडवाइस चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का ना राज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, और कभी-कभी आप उस बोझ के नीचे ना दब जाते हो। कभी-कभी आप उस चीज़ को स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। मैं मतलब कि आई ऑलवेज़ बीन द थेरेपिस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, कि हर कोई मुझे बात करे, मैं उनको अच्छे से एडवाइस करी हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे दूसरों की बातें सुन के इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था ना। देयर्स बीन वन टाइम व्हेन दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड और दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग दे वर सैड अबाउट, और वो उस चीज को लेके इतने दुखी हो गए, वो मुझे बताई जा रहे हैं कि आई फील दिस 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 दिस, और दिस इज मतलब और मतलब कि दे स्टार्टेड टीयरिंग अप, और मैं वो सुन रही हूँ और आई हैव नथिंग टू टेल, और मुझे उस चीज़ का मतलब कि इट्स लाइक अ बर्डन ऑन माई शोल्डर, कि मुझे ये इंसान बताई जा रहा है, मैं इसको आगे से क्या कहूँ। और मैं किसी और के दुख को लेके इतनी स्ट्रेसफुल हो गई हूँ कि आई स्टार्टेड क्राइंग कि वाई दिस पर्सन इज शेयरिंग दिस विद मी, क्योंकि आई एम नॉट इन द पोजिशन टू एडवाइस समथिंग टू समवन। तो अगर आपसे कोई इंसान कुछ शेयर नहीं कर रहा ना, क्योंकि मुझे पहले इस चीज़ का बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, तो आई थिंक कि आप सोचो कि मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि वाकई में दूसरे के इंसान के राजों का बोझ ना बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे मतलब कि अगेन मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट दे शुड लाइक सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली छोटी मोटी बातें तो कोई ना कोई शेयर कर ही देता है ना अपने बारे में। तो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप शेयर ही ना करो, या बिल्कुल आप रिजर्व हो जो कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, जो गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन जब आप इतने कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है कि आप किसी से बात कर करके रो रहे हो, और अगला इंसान बहुत बेबस है, तो आई थिंक देन यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। और तो इस वजह से वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि इफ इट्स ओके, अगर आपका कोई, मुझे नहीं लगता कि आप किसी इंसान को तभी दोस्त बोलोगे जब वो अपनी सारी इमोशनल बातें आपसे करेगा और आपको हर अपने सीक्रेट्स बताएगा। इट्स ओके इफ दे आर नॉट टेलिंग यू और दे आर टेलिंग दिस टू एनीवन एल्स, अगर उनका उनके साथ वो बॉन्ड है, इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी जेलस्ड अबाउट, या यू शुड फील ऑकवर्ड कि उन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेरा वो बॉन्ड नहीं है। इट्स ओके, यू कैन स्टिल हैव द फन विद द बॉन्ड यू बोथ शेयर। आपको नहीं इतना दिल पे लेने की जरूरत कि यार ये इंसान मुझे नहीं करता, एंड दे आर स्टिल योर फ्रेंड्स। और आपको हर किसी की हर राज जानने की जरूरत नहीं है। आपके जो वो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ दो चार ही होते हैं, और बाकी दोस्तों के साथ इट्स ओके टू हैव सलाम दुआ या वाले फ्रेंड्स, इट्स ओके टू हैव हैंग आउट वाले फ्रेंड्स। तो जिनसे आपका सिर्फ इंटरेक्शन हो, तो कुछ होते हैं जिनसे आपकी बस मतलब कि वही ना सलाम दुआ हो और आपका इंटरेक्शन हो, या क्लास फ्रेंड्स कुछ होते हैं जिनकी आपकी सिर्फ क्लास से में मुलाकात होती है, उससे बाहर नहीं होती। तो इट्स ओके टू हैव दैट, इट्स ओके टू इंजॉय विद देम एंड हैव फन विद देम। और उससे ज़्यादा आपको नहीं मतलब कि इफ़ दे डो नॉट चूज टू टेल
देयर थिंग्स टू यू, तो इट्स ओके, इट शुड बी कम्प्लीटली फाइन विद यू। आप भी अपनी ना बताओ, फिर उनको आप भी उसको उसको बताओ जो आपकी बता रहा है। और देन अगेन दूसरों के बहुत मत के राजों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, और मैं पर्सनली मुझे कभी कभी बहुत बर्डन करना शुरू हो जाता है। मैं खुद स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ वो सुन सुन के, मुझे खुद रोना आ जाता है कि मुझे क्यों बता रहे हो। और मेरे सर पे वो चीज़ें चल जाती हैं जब मैं किसी को ना एडवाइस कर सकूँ अच्छी, या मैं ना बता सकूँ, या मुझे किसी की बातें सुन के हो रहा हो। तो आई थिंक कि इफ समवन इज, तो कभी कभी मैं जान के शायद अवॉइड भी, एक टाइम था क्योंकि मैं इतनी एक टाइम पे हो गई थी कि मैं अवॉइड करना शुरू हो गई थी कि मैं किसी से, अब मुझे पता भी चल रहा है कि इस इंसान को है, लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद अपना बेस्ट नहीं दे सकती, तो मैं आगे से पूछ नहीं रही, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं संभाल सकती फिलहाल। तो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग। और मैं मेरी इस चीज़ों के बारे में ना, विद स्कूल फ्रेंड्स, मुझे लगता है स्कूल के टाइम पे मैं इतना शायद उनसे क्लोज नहीं थी, लेकिन मतलब कि अब आजकल आई एम सो क्लोज विद देम। आई हैव नेवर बिन दिस क्लोज विद देम, और मुझे इतना मज़ा आता है, वी ऑलमोस्ट टॉक एवरी सिंगल डे, क्योंकि अब ऑल ऑफ अस आर नाउ इन डिफरेंट प्रोफेशंस। और हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें शेयर करते हैं, अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में बातें शेयर करते हैं। तो उनसे भी मैं यही डिस्कस कर रही थी कि इट्स सो, और मतलब कि दे वेंट थ्रू द सेम थिंग, कि इट्स सो हार्ड कि जब आप ऐसे किसी को सुन रहे हो और आपके पास कुछ ना हो, और आप दूसरों की टेंशन अपने ले जाओ, और आपको इस वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाए किसी दूसरे, मतलब कि दैट्स ऑल्सो अ डेंजरस थिंग। तो इट्स नॉट ऑलवेज गुड टू बी अ थेरेपिस्ट फ्रेंड। आई एम पर्सनली समटाइम्स अ पीपल प्लीजर, और ये बहुत बुरी चीज़ है मुझ में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। It's okay to tell people that I cannot help in this thing emotionally, लेकिन you can seek professional help and it's not an insult, it's better। और मुझे personally I would, मुझे most of the time, मैं mostly जो है ना, जब मुझे कोई बहुत, मैं रो रही हूँ ना, या मुझे, मैं आई एम ब्रेकिंग डाउन ऑन समथिंग, या मुझे बहुत कोई दुख लगा हुआ है, तो आई मोस्टली ट्वीट अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे सारे अननोन लोग हैं। और मुझे मोस्टली जब भी मुझे होता है कुछ होते ना, तो मैं उस इंसान को बताना चाहती हूँ जो मुझे नहीं जानता होता, इसलिए मैं आई ऑलवेज ट्वीट अबाउट इट इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग अ फ्रेंड कि यार आई फील लो। मोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, स्पेशली जब से मैं ग्रेजुएट हुई, आई मोस्टली डोंट रियली, मैं ऐसे नहीं करती। मैं मोस्टली ट्वीट करके वो सब भड़ास निकालती हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी कभी कभी करती, क्योंकि समटाइम यू जस्ट नीड टू रैंट। यू डोंट वांट एनीवन टू एडवाइस यू अबाउट समथिंग, आपको बस बोलना होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यू आर मोर कंफर्टेबल विद रेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रेंजर, जिसको फर्क भी नहीं पड़ता, जो इस चीज़ को भूल जाएगा, जो आपको इस बात पे जज भी नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक दैट्स एन इंसल्ट, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चीज़ कंफर्टेबल है। The next thing is that के don't get involved in drama, don't ये मैंने चीज अपनी यूनिवर्सिटी में, इफ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी एंड यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, यू वांट टू एंजॉय योर यूनिवर्सिटी, मतलब के एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि ड्रामा में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो, एज आई सेड कि आई वुड लाइक टू से कि आई वॉज रियली सोशल एंड पॉपुलर इन यूनिवर्सिटी, एंड आई डोंट थिंक देयर वॉज a single person who would have bad remarks about me, I would like to say. और आई एम नॉट प्राउड, मतलब कि दिस इज नॉट समथिंग आई एम फ्लेक्सिंग अबाउट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि जब आप बहुत मशहूर होते हो, या आप हर किसी को आपका पता होता है, तो आपके कोई ना कोई दुश्मन भी होता है, या कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आपको नफरत होगी। मैं पर्सनली नहीं इस चीज़ पे बिलीव करती। मुझे लगता है अगर आप हर किसी से अच्छे से मिल रहे हो, एक बंदे की बात दूसरे बंदे को नहीं कर रहे, तो लड़ाई नहीं करे, लड़ाई में इन्वॉल्व फजूल में नहीं हो रहे, तो कोई आपसे क्यों नफरत करेगा? नहीं करेगा। और मेरे यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस में मैं बहुत से लोगों को जानती थी, और मैं बहुत सोशलाइज थी और सोशलाइज करती थी। और मुझे लगता है कि मैं ये बात बहुत मान से कह सकती थी किसी को भी, कि यू कैन आस्क अबाउट मी टू एनी वन इन द होल कैंपस एंड आई डोंट थिंक अ सिंगल पर्सन वुड हैव अ नेगेटिव रिमार्क अबाउट मी, क्योंकि आई हैव गिवन द बेस्ट। और अगर मेरा किसी से इतना वो क्लोज वाला ताल्लुक भी नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि मैंने हमेशा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट लाइक कि कोई ना कोई आपका दुश्मन होगा, ऐसा नहीं होता।
अगर आप किसी से पंगा नहीं ले रहे तो वो भी आपसे नहीं पंगा लेगा, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो खुद ड्रामा करते हैं, खुद ऐसी चीज करते हैं, कुछ प्रोवोक करते हैं और फिर वो चीज बोलते हैं कि यार हर किसी को मुझसे मसला है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही लेकिन हर किसी कि इस इंसान को मुझसे मसला है, ये इंसान एवं ही मुझसे नफरत करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान या कोई चीज जो है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले इंसान जो है वो आप डिजर्व नहीं करते और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इनिशियली कोई ना कोई चीज ऐसे पिंच या प्रोवोक की होती है जिसकी वजह से अगला इंसान आपसे उस चीज का कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो, हर किसी से आराम से प्यार से बात कर रहे हो, तो किसी को आपसे क्या मसला होना है। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक कि यार ये मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं फजूल में मुझसे मसला, आई हैव नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू देम, एंड आई हैव सीन दोज पीपल प्रोवोकिंग समथिंग जिसकी वजह से अगला इंसान आपसे जो है वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो कोई आपसे नफरत एवं नहीं करता, और आपको बस हर किसी से अच्छे से मिलना चाहिए और अब जेन्युइन तरीके से मिलना चाहिए और काइंडली मिलना चाहिए, और किसी इंसान की बुराई किसी इंसान से नहीं करनी चाहिए। आप अब ड्रामा जो है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। मैं पर्सनली आई थिंक कि आई एम पर्सनली अ वेरी फ्लेक्सिबल फ्रेंड, जो कि एक अच्छी बात भी है लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का थोड़ा सा अ, मतलब कि नुकसान भी है। पर्सनली मैं जो हूँ, मैंने कभी भी, मैं बहुत मतलब कि मैं माइंड कर जाती थी बहुत सी लोगों की बहुत सी बातें, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी उस चीज़ का इजहार नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि अगला बंदा फिर अपने डिफेंस में बोलना शुरू हो जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मोस्टली मैं अपनी बात करती नहीं थी, या मैं किसी को किसी चीज़ पे, आई ऑल्सो हेट कन्फ्रंटिंग पीपल विच इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग, लेकिन मतलब कि आई वुड ऑलवेज अवॉइड ड्रामा। तो जब मुझे पता है कि अगर मैं ये बात करूंगी कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये हुआ या वो हुआ, अगर मुझे पता है ना कि अगला इंसान ने आराम से ये बात नहीं सुनी और मुझे इस चीज इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, मुझे पता है कि उस इंसान ने आगे ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देना है या बोलने के हाँ तुम भी तो इन इन चीज़ों में गलत थी, और आगे से मतलब कि एक कितना बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। तो आई ऑलवेज अवॉइड कन्फ्रंटिंग क्योंकि आई हेट ड्रामा, और मुझे पता है कि अगर ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता या मेरी ये चीज़ नहीं सुन सकता, तो मैं बहुत सी बातें जो है वो खुद पी लेती थी कि इट्स ओके, खुद ही उस इंसान को अगर एहसास होना हुआ तो हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, मतलब कि, और आई लव हर सो मच, लेकिन शी वॉज पिस्ड टू मी अबाउट समथिंग एंड शी बैश्ड मी फॉर दैट। मैं आगे से चुप रही, आई जस्ट वेंट होम अर्ली क्योंकि आई वॉज सैड ऑन इट। तो मैंने कहा कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज, और वो मतलब कि उसको फिर रियलाइज हुआ कि यार उसको बुरा लगे, तो शी हर सेल्फ कॉल्ड मी एंड सेड के मे बी आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके। तो अगर किसी इंसान ने आपका एहसास करना है ना, उसको एहसास हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा नो रिएक्शन इज ऑल्सो एन रिएक्शन। तो जिस इंसान को एहसास होना हुआ और जो आप इंसान आपके साथ गलत करेगा, आप बस रिएक्शन ना दो। अगर वो ऐसा करता रहे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे कट ऑफ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग टू अवॉइड ड्रामा इज दैट कि आप किसी इंसान से, अगर आपको लगता है ना कि वो इंसान आपकी बात नहीं सुन सकता और उसने उस चीज़ पे एक सीन क्रिएट करना है, तो आप उस चीज़ के बारे में बात ना करो। सेकेंडली ये है कि अगर आपसे कोई आपके किसी भी कोई आप और मैं ये ना मुझे लगता है कि कोई दूसरा कोई स्ट्रेंजर आके आपको आपके ऐसा नहीं करेगा, या आपका ग्रुप आपको किसी स्ट्रेंजर की बात करे तो वो इतना कोई ड्रामा नहीं करता। लेकिन अगर आपके दो दोस्तों के दरमियान आपस में है ना, आपके ग्रुप के अंदर ही पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुझे लगता है दिस अप्लाइज टू दैट कि अगर आपका एक दोस्त आपसे बैठ के आपके दूसरे दोस्त की बुराई कर रहा है, तो आपको दूसरे दोस्त को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये इस चीज़ के बारे में इसने ये बोला था। अम, मुझे लगता है कि दिस ऑल्सो अवॉइड्स ड्रामा। मेरे साथ इतनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ लोगों ने आके, मेरी बेस्ट फ्रेंड यूनिवर्सिटी में या मेरी क्लोजेस्ट दोस्त या जिसके साथ मेरा हमेशा टाइम गुजरता था, उसके बारे में आके बातें की हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, या हमें ये है। और मैंने कभी भी आके उसको नहीं बताया क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की तबीयत का पता है, मुझे पता है कि एक इंसान एक चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, और मुझे पता है कि मैं अगर जाके बताऊंगी तो वो उन दोनों का मामला नहीं होगा, मैं उस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी और मुझे फिर स्ट्रेस होगा कि ओ ये हुआ वो हुआ, मैं इस ड्रामा में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं सिंपली बताती नहीं थी, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू, अगर कोई लेके आया कि ओ इसने ये XYZ ने ये बात की,
और मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो आई वुड ट्राई टू रिजॉल्व इट, या मैं आराम से बताऊंगी कि यार हाँ तुमने ये चीज़ गलत अपनी फ्रेंड को जाके एक। और मैं हमेशा, अगर मेरी दो बहुत अच्छी दोस्तों में लड़ाई हो गई है तो मैं हमेशा, और मतलब कि मैं बीच में आ गई हूँ, इवन दो आई हेट बीइंग द थर्ड पर्सन, लेकिन इट्स ऑलवेज लाइक कि अगर दो बंदों में लड़ाई हुई है, हमेशा ऐसा होता है कि बीच में मैं हूँ एज अ मैसेंजर, जो दोनों से बात कर रही है और बीच में है। और लेकिन मैं हमेशा उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखती हूँ कि मैं एक बंदे को दूसरे की बुराई करूँ, दूसरे बंदे को पहले की बुराई करूँ। मैं हमेशा सुलह कराने की कोशिश करती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, दोनों पार्टीज़ की बात सुन के उनको बताती हूँ कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या दिस वाज वेयर यू आर रॉन्ग, और इट्स ओके, मतलब के मतलब अगर आपने रिकनसाइल करना है तो कर लो। तो और अगर आपकी ग्रुप में ही आपस में हो रही है तो हो जाती हैं, और अगर वो आपस में अच्छी दोस्त है, मतलब कि उनको दे केयर अबाउट ईच अदर, तो वो कर लेंगे। अगर कोई इंसान आपकी केयर करता है ना तो वो चाहेगा आपसे रिकनसाइल करने का, अगर वो नहीं कर रहा ना इसका मतलब ये है कि वो बहाने ढूंढ रहा था आपसे दोस्ती खत्म करने के। और तो ये है, तो आई थिंक कि अगर आपको कोई आपके दोस्त की चुगली भी कर देता है और आपको लगता है कि आपका दोस्त जो है वो इससे नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और एक ड्रामा पूरा फिर होगा जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको फजूल में एक चीज़ की टेंशन मिलेगी जिसमें आपका कोई कसूर भी नहीं है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बता सकते हो कि हाँ मे बी वॉच, मतलब कि अगर आपसे कोई आके बिल्कुल बेसलेस गॉसिप कर है आपके दोस्त के बारे में, तो आप उस इंसान को मना करो कि मैं अपनी दोस्त के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकती, और अगर तुमने मुझे फिर बताया तो मैं उसको बता दूंगी। लेकिन आप मीसने मत बनो कि उस इंसान को आप कहो कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और अपनी दोस्त को जाके कहो कि हाँ वो इंसान वो बुराई कर रहा था। और ऑब्वियसली यू वॉन्ट डू दैट। लेकिन अगर कोई दो आपके दोस्तों में लड़ाई हुई है और एक दोस्त उस दोस्त की बुराई करे और वो दोस्त उसकी बुराई करे, तो आप उनकी बात सुनो। आप देखो कि कौन गलत है कौन सही है। हमेशा वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान की पूरी गलती हो, हमेशा दोनों की बराबर गलतियां होती हैं, स्पेशली ग्रुप में। अम, मेरे ग्रुप में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं हमेशा दोनों साइड्स की गलतियां रही हैं, और आप एक साइड की बात सुनो आपको लगता है वो सच है, और आप दूसरी साइड की बात सुनो तो आपको लगता है वो सच है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों की बात सुनो, उनको कहो कि हाँ दिस इज द part where you misunderstood it, this is the part where you were wrong, this is the part where I think this person is right, तो you should understand it। जब आप किसी इंसान से आराम से बात करोगे ना, फिर आप उस इंसान की बात सुनो आराम से, वैलिडेट करो कि आई नो कि what where you are coming from, और दिस इज मतलब कि मैं शायद होती तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करती। हाउ एवर दिस इज समथिंग दैट आई थिंक कि आपने गलत बात की है, और जिसमें मुझे लगता है कि वो इंसान माइंड कर गया हो, और फिर दूसरे इंसान को बताओ कि मुझे लगता है यहाँ आपकी गलती है, और ताकि वो आपस में सही हो सके, यू विल फील सो गुड। अब कभी कभी ऐसा होता है जो कि मैंने बहुत नोटिस, मतलब कि मैंने यूनिवर्सिटी में हमेशा विटनेस की है, जैसे कि मैंने कहा आई हैव ऑलवेज बिन थर्ड पार्टी समहाउ, क्यों जब भी कोई लड़ाई होती थी, क्योंकि मेरी अपनी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई, मतलब कि आई हैव नेवर पिक्ड अप अ फाइट विद समवन, कभी किसी को मुझसे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। और मैं अच्छी थी तो मेरे से हर कोई अच्छा है, मेरे से भी हर कोई अच्छा ही रहता था, और मैं छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि दिस, अगर मैं इस चीज़ को पकड़ लूँ, दिस इज़ वर्थ मी स्ट्रेसिंग ओवर और मी पिकिंग अ फाइट ओवर, और आगे से इतना बड़ा तमाशा हो, इससे बेहतर है मैं इस बात को छोड़ दूँ, क्योंकि आई हेट तमाशे, मुझे तमाशा नहीं खड़ा करना। तो मैं छोड़ दूंगी, अगर अगले बंदे को रियलाइज़ होना हुआ उसको खुद ही हो जाएगा, अगर उसको नहीं होना हुआ तो वो फिर इंसान मेरा अच्छा दोस्त है ही नहीं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिस्टेंस ले लूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको बताऊं कि तुमने ये गलत किया और वो फिर आगे से मुझे 10 बातें सुनाए और फिर तमाशा हो, फिर एक बंदा रोना शुरू हो जाए और 10 बंदे अंदर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन जब दो बंदों, लेकिन लड़ाइयाँ होती थी और मैं हमेशा, मतलब कि बाकियों की, और मैं हमेशा बीच में थर्ड पार्टी होती थी, तो ऐसा होता था कि एक इंसान की इतनी बुराइयां करे कि ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, ये वो, और 2 दिन बाद उन दोनों का पैचअप हो गया है, और मैं बीच में खड़ी हूँ कि हाँ तुमने तो इतनी बुराइयां की थी इसके बारे में और अब पैचअप हो गया, मतलब बस। ऐसा बहुत होता है और ऐसा होगा, और मतलब कि इट लीव्स यू पिस्ड कि यार तुमने इतनी इस इंसान के बारे में इतना गंदा किया इस इंसान को, और नाउ यूर फ्रेंड्स अगेन। तो इस वजह से जब ऐसे इंसान हो ना, फिर उनसे कहो कि यार मैं इस इंसान के बारे में नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं बुराई, मतलब कि
मुझसे ना आके ये बातें करो, मतलब कि शट अप कॉल दे दो, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो। अगर यू वांट डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व तो को कि यार मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो, तुम लोगों का अपना मामला है, तुम डील करो और मुझे नहीं सुननी मुझे। ताकि जब दूसरा इंसान फिर आके आपको, अगर आप नहीं वो विटनेस वगैरह बनना चाहते, नहीं करना चाहते ना, या सुलह भी नहीं कराना चाहते, तो आपको कि यार मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, मतलब कि मैं इस चीज़ से बाहर रहना चाहती हूँ, तो मुझे आके दूसरे इंसान की बुराइयां मत करो, क्योंकि मतलब कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकती और मैं मतलब मैं फैसला नहीं सुना सकती। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन फॉर मी पर्सनली जैसे कि मुझे लगता है कि मेरी बेसिकली इसीलिए किसी तरह लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगे कि अगर कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं है तो मैंने हमेशा चुपचाप उस इंसान से डिस्टेंस लिए। और जो मुझे लगता है कि अच्छा दोस्त है, उसकी उसने अगर कोई मुझे ऐसी बात, क्योंकि हर इंसान इंसान है हर कोई, तो कभी कभी हो जाती है ऐसी बात, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाएगी, तो मतलब कि वो आपसे अपोलोजाइज कर लेंगे। मैं पर्सनली अगर मुझसे थोड़ी सी गलती हो तो मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ कि यार नहीं, शायद मैं मतलब क्या, आई गॉट कैरिड अवे दैट टाइम, मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो आई अपोलोजाइज ऑन दैट। तो अगर आप सिंसियरली किसी से अपोलोजाइज करोगे तो आपकी फिर हो जाएगी। और आई थिंक कि मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं। आई डोंट थिंक यू शुड बी रिजिड, आई थिंक यू शुड बी फ्लेक्सिबल। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 6-7 लोग सारे आपकी सुनेंगे, कभी कभी आपको दूसरे की भी सुननी पड़ती है। और आप नहीं, ऐसा नहीं है कि 7 बंदे वहां बैठे हुए हैं तो आपको कि नहीं यहाँ बैठना है जहां मैं चाह रही हूँ, मतलब कि दैट्स मतलब कि आपको जब आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपनी नहीं मनवा सकते, अपनी नहीं कह सकते और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी आपकी सुने। ठीक है, आपको हर किसी के हिसाब से चलना पड़ता है, फिर अपना ओपिनियन देना पड़ता है। अगर उनको अच्छा लगे तो सही है, नहीं अच्छा लगे नहीं सही। अम, जो अगर आप अकेले जाके बैठ जाओगे ना और एक्सपेक्ट करोगे कि यार हर कोई मेरे हिसाब से चले, हर कोई मेरे पास आए रादर देन कि मैं उनके पास जाऊं, तो कोई आपसे एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, चौथी बार नहीं पूछेगा। तो आपको भी उनके हिसाब से चलना चाहिए, उनकी माननी चाहिए। अ, अगर मतलब कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर कोई मेरी माने, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि हम ये कर लेते हैं, मेरा आइडिया ये है, लेकिन अगर सारे इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं तो ये करें। और मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातें होती है कि एक इंसान कहेगा कि मुझे कैफे जाके बैठना है, दूसरा इंसान कहेगा कि नहीं मैंने क्लास में जाके बैठना है, या मैंने डिपार्टमेंट में जाके बैठना है। इट्स एज स्मॉल एज दैट। कोई कहेगा कि हमने यूनिवर्सिटी से आज बाहर नहीं जाके नाश्ता या लंच करना, कोई कहेगा नहीं नहीं करना है, और इस बात पे लड़ाई हो रही होगी कि मेरी नहीं सुन रहे, उसकी नहीं सुन रहे। कोई कहेगा कि यार मैं इस वीकेंड नहीं मिल सकती तो हम नेक्स्ट वीकेंड का प्लान बना लेंगे। कोई कहेगा कि नहीं मैंने तो मतलब कि इसी वीकेंड पे करना है, मेरे लिए तो यही है। तो आपको हर किसी की कन्वीनियंस देखनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको अगले इंसान की भी सुन लेनी चाहिए और उससे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी नहीं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान हमेशा अपनी जिताई जा रहा है तो उसको अपनी सुनाई जा रहा है और अपने हिसाब से किए जा रहा है, तो आप उसकी थोड़ी सी बात ना मानना शुरू कर दो कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। और आप फिर बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, मतलब कि या तो आपका पूरा ग्रुप वो चाह रहा हो ना, तो आपको कि यार कभी एक बार मेरी भी सुन लो। ऑब्वियसली 6 लोग हैं, तो अगर आप 5 बार उनकी सुन रहे हो तो छठी बार उनको आपकी सुन लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत माइनर चीजें होती हैं जिनको लोग अपना ईगो इशू बना लेते हैं कि जैसे यहाँ जाना ही नहीं है या ये करना ही नहीं है। और मतलब कि बी अनबॉदर्ड, बी मतलब कि उस चीज के बारे में बॉदर ही ना करो। इतना ना सोचो कि यार ये इंसान मतलब कि मुझे कंट्रोलिंग बनना है, तो बॉदर ही ना करो। जो मतलब कि द मेन पॉइंट इज टू हैव फन, तो जो मतलब कि मेजोरिटी जहाँ पे एग्री कर रहे हैं वहां पे करो। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रुप में ऐसे इंसान है जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही और आप वो इंसान नहीं हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती और वो बेचारा फ्लेक्सिबल है, वो अपनी इतनी आवाज नहीं मतलब कि वोकल नहीं है अपनी उस चीजों के बारे में, तो आपको चाहिए कि आप उसको इम्पोर्टेंस दो। आपको कि अच्छा ये इंसान क्या सोचता है इस चीज के बारे में। तो कभी कभी ये होता है कि आप खुद उस पोजीशन में नहीं होते, लेकिन आप किसी और को उस पोजीशन में देख रहे होते हो, तो आपको उस टाइम उस बंदे को वो करना चाहिए जो आपको लगता है कि अगर मैं उस पोजीशन में होती तो मैं कर सकती। ठीक है, दिस इज देन आई थिंक कि वही बात है कि आपको नहीं किसी चीज पे
कंट्रोलिंग होना चाहिए। मैं अपनी जर्नल पे पॉइंट्स पढ़ रही हूँ कि डिड आई कवर्ड एवरी सिंगल पॉइंट। आई थिंक आई डिड। आई थिंक देयर इज सो मच मोर देन यू दैट यू कैन टॉक अबाउट, लेकिन आई थिंक द थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट, क्योंकि मुझे बोलते हुए 1 घंटे से ज़्यादा, मुझे मतलब कि 1.5 hour हो चुका है, तो आई थिंक दैट आई शुड रैप इट अप। आई थिंक देर आर सो, मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं बहुत बातें कर सकती हूँ, और मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही मेनली डिस्कस किए हैं, लेकिन आई होप दिस हेल्प्स। आई थिंक दैट पहली जिंदगी में इतने मसले हैं, तो आई थिंक फ्रेंडशिप शुड बी अ बॉन्ड दैट यू शुड इंजॉय एंड यू शुड मतलब कि टेक इट वेरी लाइटली। तो आई डोंट थिंक दिस इज, आपको ऑलरेडी इतना प्रोफेशनल स्ट्रेस है या कोई और किस्म का स्ट्रेस है, तो फ्रेंडशिप का भी स्ट्रेस हो ऊपर से। आई थिंक कि अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आपकी दोस्ती ख़त्म हो रही है या यानी फजूल का ड्रामा हो रहा है, तो और लेकिन तो आपको उस इंसान को करना भी चाहिए कि अगर कुछ लोग होते हैं जिनके साथ मतलब कि जिनके साथ इतना वर्थ इट नहीं होता कि आप अपनी इतनी एफर्ट पुट करो और उनके साथ मामला रिजॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गंदा कर रहा है जान के, या फिर आपसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, और मैंने शुरू में बताया है ना कि कुछ लोग होते हैं वो एकदम से बेस्ट फ्रेंड आपको बना लेते हैं या एकदम से हो जाते हैं, और ऐसे ही मोस्टली लोग होते हैं जो बाद में आपके कैरेक्टर को गंदा करेंगे या आपके बारे में गलत बातें करेंगे, आपसे फजूल में दोस्ती तोड़ देंगे। तो कुछ, मुझे लगता है कि कुछ दोस्तियां इतनी वर्थ इट नहीं होती कि आप उनके लिए अपनी सफाइयाँ दो, ठीक है। और अगर कोई इंसान जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा ना, वो हल्का सा अगर उससे थोड़ी गलती हो जाएगी ना, वो आपसे, आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे ना, वो आपसे अपोलोजाइज कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपको पता लग जाता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो हमेशा अपनी मनवा रहा है, अब कंट्रोलिंग हो रहा है, ये कर रहा है, आपको शायद यूज़ कर रहा है, और फिर आपको गंदा कर रहा है हर किसी के सामने, तो ऐसी दोस्ती में अपनी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हाई स्कूल तक ऐसी दोस्तियाँ होती हैं, क्योंकि हर कोई डेस्परेट होता है अटेंशन के लिए, फेम के लिए, उसके लिए। लेकिन जब आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, और स्पेशली जब आप अपना हाफ यूनिवर्सिटी कर लेते हो, उसके बाद जो आपको दोस्तियाँ मिलती हैं ना, वो बड़ी जेन्युइन होती हैं। मेरी पर्सनली अपनी क्लास में इतनी अच्छी दोस्ती थी लोगों से, मतलब कि मेरा अपना क्लास में ग्रुप बन गया, क्योंकि इट्स ईजी कि आप एक मतलब पहले किसी स्टडी के हवाले से बात करते हो, और फिर उसके बाद जो है वो आपका ग्रुप बन जाता है, और फिर आप साथ मौजे मारते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग, मैं हर किसी को इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि आपको अपने क्लास में, मतलब कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं तो आपको अपनी क्लास में लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इट्स सो मच मोर फन एंड इट्स हेल्पफुल कि आप मिलके पढ़ भी सकते हो, और आप प्रोफेशनली एक जगह स्टैंड कर रहे हो तो आप आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में नहीं अच्छे लोग, मैंने बहुत से लोग वैसे देखे हैं जो मतलब कि यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो आके कहेंगी कि हमारी क्लास में किसी से बनती नहीं है। मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसकी क्लास में किसी और से दोस्ती नहीं थी, एंड इट वाज बिकॉज शी वाज प्रॉब्लमेटिक। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हर किसी को जाके शायद कहती हो कि मेरी क्लास वाले मुझसे नहीं, मतलब कि मेरी नहीं बनती, वो लोग मेरे बारे में नहीं मतलब के करते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक इतना बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल आपसे नहीं, मतलब कि आपको उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप में भी प्रॉब्लम है, एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट वेयर यू आर रॉन्ग एंड अपोलोजाइज फॉर दैट। अगला इंसान अगर आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं तो सही है, वरना आप किसी और के साथ अपनी सिंसेरिटी जाके शो करो और उसको अपना अच्छा दोस्त बनाओ। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। आई थिंक के फ्रेंडशिप इज मतलब कि अ ब्यूटीफुल थिंग, और कभी कभी ऐसा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई भी हुई हो ना, तो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं कसूर होता है। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं, अगर वो दैट हेल्प्स यू, तो आई थिंक दैट यू वुड बी एबल टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग एंड पीसफुल एंड इन इंजॉयबल फ्रेंडशिप, जैसे मेरी अब मोस्टली हर किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, एंड देयर इज नो ड्रामा, विच इज़ वेरी फन। और मतलब कि हम मिलके बात करते हैं और आपस में शुगल करते हैं, लिटरली कोई ड्रामा है ही नहीं, क्योंकि आई नो हाउ आई हैव टू डील विद इट। अब तो क्योंकि ऑब्वियसली मुलाकात भी नहीं होती, जब आपकी किसी से डेली मुलाकात हो तो ज़्यादा ड्रामा के चांसेस होते हैं। लेकिन देर आर थिंग्स दैट यू कैन अवॉइड, देर थिंग्स दैट यू कैन बी वोकल अबाउट, देर थिंग्स दैट you need to be flexible about, and there are things that you need to be kind about, there are things that you need to give, and there are things that you need to step back on, ताकि आप अपनी मेंटल पीस भी प्रोटेक्ट कर सके हो, लेकिन आपकी किसी से अच्छी दोस्ती भी रहे।
और डोंट ट्राई टू फोर्स फ्रेंडशिप, डोंट ट्राई टू चेज टू हैव अ बॉन्ड विद समवन। अगर आपका किसी से होना हुआ तो आपका नेचुरली हो जाएगा। और आहिस्ता 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 शुरू में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रामे भी होते हैं, तमाशे भी होते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 आपका मतलब कि वो मिच्योर होते जाते हो। बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंडशिप्स हैं जिनकी शायद मेरे इनिशियली हम बहुत इतने मतलब कि ऑपोजिट्स थे या हमारी इतनी नहीं थी, और अब आके हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखे और अब आके हम एक्सेप्ट करते हैं कि यार हाँ यहाँ मैं गलत थी। तो ऐसा है, ड्रामे होंगे स्पेशली यूनिवर्सिटी में। यू नीड टू बी मतलब कि अगर यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। इफ़ यू वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट तो फिर कोशिश करो कि सुलह हो, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आप दो लोगों की सुलह कराएंगे। लेकिन दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द पॉडकास्ट, ताकि जो भी मेरी नई एपिसोड आए तो यू गेट अ नोटिफिकेशन. Make sure that you give this episode a 5 star, or I don't know how it works. Make sure you give the episode or the podcast a 5 star, or make sure you are following me on Instagram or on Twitter, or I'll see you guys next week. And have fun, have a great week ahead, and have a great weekend ahead. Or I'll see you guys soon, or bye. Love you all.